Bro, thank you so much for your time. I meant what I was saying earlier. I think every guy my age plus minus 5 years has rehearsed sitting across from you, and I'm sure you've heard that. I have. How is that? Is that different? Because I've also realized listening to you talk elsewhere that you no longer relate with the same person people popularly know you for. There has to be a dissonance, ना कि मेरे को लोग ऐसा जानते हैं मैं वो हूँ नहीं. Is that an active thing? See, when you look at the sky, night sky, the stars that you see and the constellations that you see, वो ना बहुत साल पहले वो they're like 100 light years away, let's say 1,000,000 light years away. तो वो 1,000,000 साल से वो लाइट आ रहा है. अभी जो हमारे को दिख रहा है ना, वो 1,000,000 साल पहले वैसा था. अभी वो शायद नहीं है वैसा, बट हमारे लिए वो अभी है. सो लोग अभी भी जो यूट्यूब में देखते हैं या मेरे को जिस तरीके से वो याद करते हैं, इट्स अ स्नैपशॉट ऑफ माई लाइफ, ऑफ समथिंग दैट आई यूज टू डू, समथिंग मे बी आई यूज टू बी लाइक, मगर वो मैं नहीं हूँ. जिसके साथ तुम बैठ के रिहर्स करते थे कि सोचते थे कि अगर मैं इसके ऑपोजिट बैठूंगा तो मैं, वो मौका अब चला गया. वो बंदा है ही नहीं. Sure. वो बंदा बिल्कुल भी नहीं है. But I am aware of the fact that a lot of people have a very strong opinion of who I am, and I'm not that guy. That's okay. And sorry if I'm prying, but did you move away from being that guy because people had a very strong opinion? No. No? That's not the case. No. यार मैं एक चीज़ बता दूँ, पूरे वर्ल्ड में और ख़ासकर इंडिया में, खासकर तो नहीं पूरे वर्ल्ड में ना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा बदनाम है. दो चीज़ें. एक है फेल होना किसी भी चीज़ में. इट्स रियली देयर इज अ फोबिया अगेंस्ट इट. मतलब इट्स ऑस्ट्रेसाइज्ड कि फेल नहीं करना. दूसरा, लर्निंग अ लेसन, कुछ सबक सीखना, वो एक गाली है. तुम बोलते मैं तेरे को सबक सिखाता हूँ, यू हैव लर्नड योर लेसन, आई विल टीच योर लेसन. वो एक धमकी है. समझ रहे हो? Right. जबकि इट हैज़ टू बी द मोस्ट एस्पिरेशनल थिंग इन लाइफ. Sure. यू शुड लर्न लेसन्स. तुम्हें सबक सीखने चाहिए. अगर मैं ये बोलूँगा मैंने बहुत सबक सीखे यार पिछले 10-15 साल में, तो लोग बोलेंगे ज़िंदगी से थप्पड़े खा के सीखा होगा. हाँ, खाए मैंने दबा के. बट आई एम प्राउड टू से कि मैं आई हैव लर्नड लेसन्स एंड आई हैव. अब अगर आपने लेसन्स को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं किया तो तुम जैसे बेवकूफ़ और कोई नहीं है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो उम्र के साथ ना, अगर तुम बेवकूफ़ नहीं हो, यू विल चेंज, especially if your experiences are strong, positive and negative. I'm glad to have had those experiences. I saw the highest of highs, I saw the lowest of lows, and I have emerged out of it in a manner that nobody expects. आप मुझे जानते नहीं हो, आपको लगता है कि आप मुझे जानते हो, या जो आपके शो देख रहे हैं उनको भी लगता होगा कि शायद वो मुझे जानते हैं. But I am going to disappoint you. And I'm happy to do so. I'm comfortable in disappointing people. It cannot have been easy, no? Like, it's Nothing a easy. large shift, bro. Yeah. Very realistically, matlab, forget the fact that the cameras are rolling, matlab, to not only say I'm no longer that person, but the fact that I will disappoint you, that I'm not Yeah. that person. I'm assuming this is a very recurring theme in your life, that fight between who you were and who you are now. Like, क्योंकि लोग आके पूछते होंगे भाई अरे रघु, they want you, brands when they collab with you, they probably want you to do that callback. All of that I is don't want to have this look. It's for the money. No. It's roles that I'm doing, they're casting me for this. They want me like this. Okay, so I'll come to that later. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. My marriage got over. Okay, you know I'm divorced. Sure, yeah. Right. उसके बाद डेटिंग की कोशिश हुई. और डेटिंग में कोशिश क्या थी? आई यूज्ड टू जस्ट गो आउट विद माय फ्रेंड्स. लोग मिलते थे. यू नो, यू गो आउट टू अ रेस्टोरेंट और अ क्लब और अ पार्टी, मीट पीपल. एंड हमेशा मुझे ये फीलिंग आता था कि दिस गर्ल इज वॉचिंग टीवी राइट नाउ. उसको ऐसा लग रहा है कि वो टीवी देख रही है. एंड आई फेल्ट दैट she's talking to me because she thinks I'm that guy. Sure. I'm not that guy. So I am going to disappoint this girl, whoever she is, no matter whether I like her or not. ये disappoint होने वाली है.
क्योंकि मैं वो हुई नहीं जो ये सोचती है. नैटली से मैं जब मिला, शी डिड नॉट हैव अ प्री कंसीव नोशन ऑफ मी बेस्ड ऑन अ शो. उसने वो शो देखा नहीं था, उसने वो मेरे को वैसे मिली थी मेरे दोस्तों के साथ. सो द वे आई एम इज व्हाट अपीयर्ड. सो ये जो डिसअपॉइंट करने वाली बात है, हाँ, आई नो दैट पीपल, जो लोग मुझे लाइक करते थे, मैं उस जिस तरीके से था, वो तो डिसअपॉइंट होंगे ही. जो लोग मुझे हेट करते थे ना, वो भी डिसअपॉइंट होंगे, बिकॉज दे हैव लॉस्ट समथिंग दैट दे हेटेड. एंड आई थिंक वी लव टू हेट. You mean we as in humans? We humans in general, Indians, काफी Any kind of mobs will probably end up there, है ना. कोई भी अगर भीड़ भड़का हो गया, उनको कोई एक चाहिए, फिर चाहिए. We like to hate. अगर वो बंदा चेंज हो गया ना, we feel कि हमसे कुछ छीन लिया तुमने, हेट करने का मौका छीन लिया. It's a uniting force. Having a common enemy is a uniting force. It's a uniting force, and it makes you feel good about yourself. Moral outrage. Actually, YouTube को ये एल्गोरिथम को यही एक ओनली इंस्ट्रक्शन इट वाज गिवन वाज मैक्सिमाइज एंगेजमेंट. दे डिड नॉट से डू दिस डू दैट. उनका सिर्फ एक गोल था, मैक्सिमाइज एंगेजमेंट. द एल्गोरिथम फिगर्ड आउट ऑन इट्स ओन दैट आउटरेज ड्राइव्स एंगेजमेंट. द एल्गोरिथम फाउंड, उसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए ह्यूमंस के साथ, और ह्यूमंस को उसने इस नतीजे पे पहुंची वो एल्गोरिथम कि भाई ये आदमी जब ऑफेंड होगा ना, तब ये चिपक जाएगा मेरे पे, क्योंकि उसको ऑफेंड होना पसंद है. वी फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स दैट हमारी एक मॉरल स्टैंडिंग है जो ऑफेंड हुई है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? राइट. बिकॉज इन कंपैरिजन टू दिस ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफेंस, इसने ये कर दिया, मैं इसको देख के कहता हूँ मैं इससे बेटर हूँ, एंड देयरफॉर दैट हेल्प्स यू, राइट. बट ऑल्सो एंगर प्रोड्यूसेस द मोस्ट स्टिकेबल रिस्पॉन्स. मतलब ये भी देयर वाज अ स्टडी डन कि कौन से इमोशन में what produces the most stickable response, as in response you follow through with it, and that is anger. तो anger के साथ आदमी को घुमाना बड़ा आसान हो जाता है. But that makes me want to ask, were you aware in the design of roadies that is going to work? Because it was a clear beginning of something new. Like, it was very different from everything that had followed. I have no memory before 2002. I was born in 96. So I have only 6 years of my life, and then you sort of start having memories. Tab bhi television was very different, very clean, very made for family. And then something radical happens. Were you aware that anger is going to work, that aggression is useful in some way, etc.? बताता हूँ. हाँ. As soon as we get. Yeah. इसको मंजो देख लेना, ये फ्रेम में ना हो बस. हाँ. क्या ये? नहीं, वो basically glass. We generally keep stuff on this side, ताकि वो glass बीच में ना है. Okay. Or just move this along whenever you're talking, so that it's like a fist away from your face. Okay. That's. बताओ. Please. ये बहुत आसान है सोचना, बहुत नेचुरल है ये सोचना कि ये कुछ सोच समझ के किया गया है रोडीज. मैं आया और मैंने देखा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ अभी तक. चल एक काम करते हैं, गाली देते या चिल्लाते लोगों पे. इट्स ईजी टू थिंक दैट नाउ, बट ये सोचो बिफोर रोडीज व्हाट हैड हैपेंड जो मुझे ये कॉन्फिडेंस देता है कि दिस विल वर्क. नथिंग हैड हैपेंड. सो इट्स अनप्रेसिडेंटेड. उसका प्रेसिडेंट है ही नहीं. ये रोडीज एक्चुअली बना इसलिए क्योंकि उसको डेवलप होने का मौका मिला. जब 2003 में मैं मुंबई आया, MTV ज्वाइन किया मैंने, और वहाँ पागल लोग रहते थे, पागल, मेंटल. साइरस ओशीदार करके चैनल का हेड था, क्रेजी जीनियस. अच्छा. ओके. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द MTV इमेज. और 2-3 काफ़ी लोग थे. वो क्या करते थे, रैंडम मैवरिक्स को हायर कर लेते थे और उन पे फिर दखलंदाजी नहीं करते थे. सट्टा खेलते थे कि तू जा भाग. हाँ कि तू ये करता, तू कर, हम हैं यहाँ पर. क्योंकि उनको ना कोई देखता भी नहीं था ज़्यादा उस टाइम पे. तो दे वर हैप्पी टू स्क्रू अराउंड एंड फाइंड आउट, यू नो. मेरे को उन्होंने हायर किया रोडीज करने के लिए. मैंने अब रोडीज जब आया था ना, तब कोई रियलिटी शो भी खास नहीं था. टैलेंट हंट, मतलब अंताक्षरी वगैरह होती थी और कुछ नहीं. तो उन्होंने बोला कि यार एक ट्रैवल शो है, ये ट्रैवल शो करना है. मैं बोला ट्रैवल शो नहीं करेंगे, इसको कुछ अपना पर्सनैलिटी. उस टाइम एक्चुअली आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट इन माई लाइफ एट दैट टाइम, बिकॉज लाइक इन व्हाट वे? आई वॉज ब्रेकिंग अप विद सोसाइटी इन माई हेड. आई वॉज ब्रेकिंग अप विद फेथ. मैं रिलीजन को, फेथ को क्वेश्चन करने लगा. काफ़ी
सोसाइटी को क्वेश्चन करने लगा था मैं. And something had happened before? नहीं यार, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट होते ही रहते. Like growing up? यार मैं आपको बता दूं 92 में जो Situation बाबरी मस्जिद का हुआ, फिर 93 में राइट्स हुए, उसके बाद जो बयान आए पॉलिटिशियंस के, मैं उस दब देख के मैं मॉम्स अ जर्नलिस्ट, वाज अ जर्नलिस्ट, सो मेरे घर पे सारे न्यूज़पेपर आते थे और टीवी में भी न्यूज़ आता था, रेडियो पे न्यूज़ चलता रहता था. सो आई फेल्ट कि यार ये जो बोल रहे हैं ठीक नहीं है, इट्स नॉट सिटिंग राइट विद मी, व्हाई आर दे सेइंग लाइक दिस, और इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन use of religion, political weaponization of religion, that I first started questioning it. अब रिलीजन एक ऐसी चीज़ है, वो फेथ पे चलती है, एविडेंस है ही नहीं. जहाँ आप क्वेश्चन करोगे वहाँ वो क्वेश्चन टिक नहीं सकता, आपको सिर्फ वो हाँ इस किताब में लिखा, उस किताब में लिखा, ऐसा बोल देंगे वो. Sure. So काफ़ी चीज़ें, राजीव when we dropped out of college also, मुझे एजुकेशन सिस्टम से बहुत प्रॉब्लम होने लगी. So there were a lot of things. It was building. I am that kind of inquisitive mind, I guess. Yeah. मैं पढ़ता था बहुत और पढ़ के क्वेश्चन करता था काफ़ी चीज़ों को, और उस टाइम मेरे अंदर काफ़ी हलचल मची हुई थी. I think it's a very common experience, bhai, when you are too smart for your surrounding systems, which happens to a lot of Indians, you know. स्कूल में एग्जाम के नाम पे अगर आप एजुकेशन समझ रहे हो तो 8वीं क्लास का बच्चा भी कहता है एग्जाम थोड़ी पढ़ाई है, पढ़ाई तो ये कि मैं कुछ सीखूं. तो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी नेचुरल एवोल्यूशन स्टेज जहाँ पे यू फर्स्ट हैव एन एग्जिस्टेंशियल व्हाट इज दिस सोसाइटी, व्हाट इज ऑल ऑफ दैट. आई थिंक इज दैट, एम आई गेटिंग राइट? फिर वहाँ से हमने जो मैंने अपने वर्ल्ड व्यू को डालना शुरू किया. मैं आई स्टार्टेड गिविंग देम टास्क कुछ था नहीं, बट वो टास्क रोडीज 1 जो था वो एक कंपटीशन नहीं था, उसका कोई विनर नहीं है. लोग सोचते हैं रणविजय इज द विनर ऑफ रोडीज 1, ही इज नॉट. इट वाज जस्ट 7 पीपल गोइंग थ्रू अ जर्नी, बीच में 2-3 वोट आउट्स हुए, एंड हु फिनिशेस, आई जस्ट मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट लॉन्ग अ लिटिल बिट. बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बाइक एक कम है, नहाने का साबुन कम डाल दिया, खाने का बजट कम दे दिया, रहने का, दैट्स ऑल दैट आई वाज डूइंग, एंड इट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. तो सीज़न 2 में हमने उसको कंपटीशन बनाया, बट इट वाज अ वोट के बेसिस पे, आयुष्मान वॉन इट. सीज़न 3 पे मैंने उसको कंपटीशन अमंगस्ट ईच अदर, मनी टास्क, इम्यूनिटी टास्क, वोट आउट एज पार्ट ऑफ एवरी एपिसोड. ये सीज़न 3 में तीसरे अब पहले 2 सीज़न में ऑडिशंस थे ही नहीं, मतलब थे बट हमने दिखाया नहीं था. वो मैं कर रहा था. पहले सीज़न में तो मैं कैमरा लेके खड़ा हुआ था, मैं था भी नहीं उस पैनल में, बट मैंने देखा कि वहाँ बॉम्बे में लोगों को हिंदी नहीं आती, ठीक है, और ये लोग जो ऑडिशन करने आ रहे हैं उन्हें इंग्लिश नहीं आती. तो एक अजीब सा ही कॉन्वर्सेशन दोनों में चालू था, बहुत ही डिसफंक्शनल सा. तो मैंने कहा कि यार देखो, यहाँ पर किसी को बैठा जिसको हिंदी आती है, तू बैठ जा. मान ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ. अब बैठ गया, अब मैं उनसे बातें कर रहा हूँ. अब मेरी नेचुरल टेंडेंसी ये थी कि मैं इंटेंस हो जाता था, इंटेंस. लोग मेरे साथ जो बैठते थे ना, उनको बड़े मजा आने लगे. एक कैमरा होता था ऐसे, जो हम उसको रिकॉर्ड कर रहा है, जिसको मैं नहीं, मेरे पे कैमरा नहीं, सिर्फ एक कैमरा उस पर, ताकि हम सबका लेके जो हमें पसंद आए उनका बिट्स निकाल के हम ऑफिस में अपने सीनियर्स को भी दिखा पाएँ कि हम इनको कास्ट करना चाहते हैं. कई बार इनको भी दिखाना पड़ता था, स्पॉन्सर को, हीरो होंडा को. तो इसलिए तो जब ये सुनते थे ना वो इंटरैक्शन, तो एमटी वाले बोले यार ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वी शुड शो इट. ऐसे पागल मत बन. आई रियली बैक देम, मत करो, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. अगर उनको पता चल गया वो प्रिपेयर हो जाएंगे, मेरा काम मुश्किल हो जाएगा. मत करो, मैं चुपचाप से सुमड़ी में करता रहूँगा. आई वॉन्ट टू उनके प्रिपरेशन को तोड़ना चाहता हूँ मैं, उनको आई वॉन्ट टू कैच देम अनअवेयर्स. बट नहीं, वो फाइट में हार गया और इन्होंने डाल दिया शो, और ये बवाल मच गया इसको लेके, ठीक है. तो अंडरस्टैंड दैट दिस वाज नॉट समथिंग दैट इज थॉट आउट. इट्स ट्रायल एंड एरर करके, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस. हीरो होंडा से ज़्यादा पैसे चाहिए तो उनको दे वांटेड टू बी ऑन एयर फॉर लॉन्गर बिकॉज ऑफ दैट. नंबर ऑफ एपिसोड्स कैसे बढ़ाएं, चल भाई हम लोग ये ऑडिशन कर रहे हैं, इन पे 2 कैमरे और लगा और इतने सस्ते में हमें और एपिसोड मिल जाएंगे उसमें, बस इतना. सो दिस इज नॉट समथिंग दैट वर्कड. इट्स जस्ट आई हैड द स्पेस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड पीपल रिएक्टेड टू इट. The first auditions were you and Nikhil, na? No, that was the second. Season 3 में पहली बार हमने देखा था. My boss, the executive producer of MTV was sitting, head of marketing was sitting, सारे head of HODs आके बैठे हुए थे बस. अच्छा. And then later it became you and Vijay. Season 4 was me, Nikhil and Mika. Season 5 was me and Nikhil. Right. Season 6 was me and Rajiv.
सीजन 7 हमने नहीं किया था, फिर मैं राजीव रणविजय. अच्छा. I think I started watching when you went to Australia. I think it was Season 6, that was the one Rajiv came in. right. उससे पहले भी I remember watching Bani and Chang वाला, but I was too young for that. Rudy's 4. Yeah, right. 5 में कौन था? आशुतोष करके. उसी में तो ऑस्ट्रेलिया गए थे आप लोग? नहीं, उधर हम गए थे ब्राजील. Thailand. सॉरी, हाँ, पहली बार इंटरनेशनल गए थे, थाईलैंड और मलेशिया. Right. वो भी आशुतोष वाला भी देखा था मैंने. I remember. It's very interesting because I have to ask. I understand a work this sensational. आप उसे प्लान नहीं कर सकते. Of course, आप उसमें you keep adding to it, but initially it is probably a spark, a mistake, some act of something, right? Like an act of inspiration rather. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. And then this show happens, it takes over your life. I'm pretty sure it became you became it, right? Like, and not only is the public perception कि रघु कौन है सबको पता लग रहा है रूडीज के थ्रू, the money is coming from there, your life is around it, it becomes the same thing, and then you left it for whatever reason. I want to come to it too. But now when you look back, and I've always wondered, because I can look within myself and tell you how many things I learned from watching Raghu and Rajiv on camera, good and bad, right? हम लोग ना स्कूल में You used to play Rudy's. Yeah, bro, like हम ऐसे साथ हैं. हाँ, everybody's played roadies. कोई ये मैं रणविजय बनूंगा, मैं रघु बनूंगा. Like it was a thing. We would discuss Not only this in stuff. colleges and schools, office में HR भी ऐसे behave कर रहे हैं. They were taking auditions. नौकरी करेगा तू? This was terrible. Right? तो when you look back, do you think how do you conceptualize the impact you've had on your viewers? I don't know. You don't know. I don't know. Do people come and tell you? Yeah. And is it good and bad both? Both. Yeah. What is the good part they tell you? कि मैंने उनका वर्ल्ड व्यू इन्फ्लुएंस किया है, कई चीज़ें क्वेश्चन करने में को एनकरेज किया है, ब्लाइंडली फॉलो करने से इंस्पायर किया कि थोड़ा इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो. द वे दे यू लुक एट द वर्ल्ड, द वे यू लुक एट सेक्सुअलिटी, फेमिनिज्म, ऑल एक्टिविज्म, courage. Sure, courage is a big one. I can say that. So those are the things that's a positive feedback that I get. And what is the negative? Negative is that I have spoiled the generation. मैंने generation मतलब straight up कि तूने generation spoil करी है. हाँ. And do you think you have? I'm very interested. I don't know, bro. एक चीज़ मैं बताता हूँ. मैं चंडीगढ़ में था, मुझे याद है, और मैं नीचे गया था. एक आंटी मिली मेरे को, कहते ओ यू आर द गाय हुज माई किड्स कीप वॉचिंग योर शो एंड आप वो हैं जो जनरेशन को बिगाड़ रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, गालियाँ सिखा रहे हैं. मैं बोला आपके बेटे कितने, क्या उम्र है? कहते एक 16 का, एक 18 का. मैं बोला वो सिखा सकते मुझे, मैं नहीं सिखा सकता. रीज़न ये है कि अगर आप दिल्ली में पले पड़े हो, मैंने ऐसा कुछ, ऑल आई डिड वाज, जिस तरीके से तुम दोस्तों से बातें करते हो स्कूल कॉलेज या सड़क पे, उसको मैंने टीवी पे ले आया. उसका भी रीज़न था. अब मैं रीज़न को एज एन एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ. जब कोई जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाता है या फर्स्ट डेट पे जाता है, वो एक प्रोजेक्टेड सेल्फ दिखाता है आपको. वो दिखाता है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचो. Agreed. वो एक प्रोजेक्टेड सेल्फ है, वो एक वो फेक है. इट्स नॉट जेन्युइनली यू. श्योर. ओके, इट्स व्हाट यू वांट मी टू बिलीव. That happens on dates. आप रिश्ते के लिए मिलते हो तो भी you are playing a character. हमेशा ना. हाँ. तो अब मैं जब इस इंटेंसिटी में, इफ आई कम एट यू सच फोर्स, वो कहता है माइक टायसन की एवरी बॉक्सर हैज अ प्लान टिल ही गेट्स पंच्ड इन द माउथ. ठीक है, उसके बाद कोई प्लान नहीं होता, इंस्टिंक्ट होता प्योर. तो मेरा वो काम था, पंचिंग इन द माउथ. ठीक है. और मैं इस भाषा को यूज़ करता था कि तुम्हें पता है कि ये टीवी पे नहीं जाता है, ये टीवी के लिए नहीं हो रहा है, ये कैमरे के लिए नहीं हो रहा है, ये रियल है, ऐसा तुम्हें लगेगा आफ्टर द वे. सो आई यूज दिस लैंग्वेज एज अ टूल टू शेक देम अप. हैविंग सेड दैट, दैट वाज माइट हैव बीन माय रीजनिंग, बट इट्स नॉट, मेरा एक्सक्यूज नहीं है वो. कई लोग बोलते हैं कि टीवी पे बच्चों ने गाली देना कूल समझा इसको देख के. हो सकता है, यू नो. जो लोग बोलते हैं कि मैंने इंस्पायर किया है, जो लोग बोलते हैं मैंने बिगाड़ा है, दोनों के पास पॉइंट्स हैं. आई डिड टॉक अबाउट थिंग्स दैट वर नॉट टॉक्ड अबाउट. फॉर इंस्टेंस हमारे ना जीडी में टॉपिक्स होते थे, मैं ही लिखता था वो क्वेश्चंस. उस पर डिबेट करो. और वही चीज़ें हम अपने क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिखते थे कई बार कि शुड प्रोस्टिट्यूशन बी लीगलाइज्ड. ठीक है. अब इसके दो वो है. पहला है कि क्यों भाई लीगल करके तुम क्या बोल रहे हो, सब जाओ
के पास नहीं, इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन माना जाता है उसे। वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन बहुत है औरतों की, कोई हेल्थ केयर नहीं है उनका, कोई रेगुलेशन नहीं है, पुलिस वाले एक्सप्लॉयट करते हैं, पिम्स एक्सप्लॉयट करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज उससे बढ़ रहे हैं, उनको हेल्थ केयर दो, उनको टैक्स के ब्रैकेट में लाओ, बहुत सारा you can make money for the government also. Yeah, you can organize that sector if it exists and you can't do anything about it. है ना, तो that's one. मैं बोलता था कि क्या हमें कॉलेजेस में कॉन्डम वेंडिंग मशीन्स डालना चाहिए। वो बोलता है हम थोड़ा ना सेक्स करने जाते हैं, हम पढ़ने जाते हैं। यार हाँ, हम लड़कियां थोड़ा ना दे रहे हैं यार तुम्हें, हम कह रहे हैं कि सेक्स हो रहा है, सेफ रहो, प्रेगनेंसी में मत जाओ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मत फैलाओ। सो दीज वर थिंग्स वी वर टॉकिंग अबाउट, वी वर डिबेटिंग openly homosexuality, living in, these are questions that we were कहीं बात होती नहीं थी पॉपुलर मीडिया में। ये these are things that are relevant to the youth's life and these are strong points of view, प्लस मॉडरेशन नहीं था कोई कि जैसे बरखा दत्त बैठी हुई हैं और बोल रही नहीं आप बोलिए, अच्छा अब आपका क्या कहना है इनके बारे में, ऐसा मॉडरेशन नहीं था, स्ट्रीट फाइट था। तो what was I talking about? Yeah, so we brought that out. We created a platform where we could talk about these things. Of course तुम्हें लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो सकती है, sure हो सकती है, but if you're missing the whole point, I mean, ठीक है, I get it. I'll follow up with a question. I can disagree with you. You may dislike the language. I disagree. ठीक. You know what is also super interesting about you is not only are these questions relevant for your show and the persona or the personality you had before, but also you have decidedly changed. अच्छा, और पता क्या है? I'll tell you. It's an anecdote. It might sound stupid, but the first time I saw Andrew Tate on camera, I was like, मैंने तो देखा हुआ यार. I've seen Raghu, right? And before, I didn't know until then कि Andrew Tate क्या कह रहा है, and my image of Raghu is completely opposite of who I am. Agreed, right? और मेरा image of Raghu is based in 2005, right? तो फिर slowly, you know, my opinion changed, but I know you for having that machismo masculinity on screen, and now you're telling me you have this softer masculinity, which is a divorce from this existing person, and not only that, that person जो पहले exist करता था, it harmed you and protected you. You've thought about this problem very deeply. I have written a book on it. You've also done a podcast on it. Yeah, a little bit. Right. But डिटेल में किताब में लिखा है इसके बारे में. Tell me more. Like, tell me about this person, and not probably, you don't have to specify yourself. Maybe you can speak in generals. And tell me about what follows now, this other person. देखो, एक ना मैं ग्रोइंग अप मैं बहुत ही टिमिड और बहुत ही इंट्रोवर्टेड लड़का था, और मैं और राजीव काफ़ी बुली होते थे, ठीक है, For being twins? for being twins, for being skinny, for being different. ठीक है. ठीक है, रोज ही मार खाते थे हम. कोई आके मारता था? हमारे क्लासमेट्स जो हाइट में उम्र में हमसे बड़े थे वो मम्मी मारते थे कई जगह, और फिर बाद में बड़े हो गए तो एक बार तो जूनियर ने भी पेल दिया मेरे को पकड़ के. क्या बात कर रहे हो? That has to hurt more. It did. Yeah. It did. But now my point is, I wasn't going to hit him. वो आके मेरे को मारने लगा. Anyway, the point is, मुझे समझ में आया कि यार मुझे ये तब मार रहे हैं क्योंकि वो मार सकते हैं. मैं सोचता था यार मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है. मेरे अंदर ना एक गुड और बैड का बहुत ही रिजिड सेंसिबिलिटी डाला गया था घर से. जो किताबें पढ़ते हो, जो कहानियाँ तुम्हें सुनाते हो माइथोलॉजी की वगैरह, ये अच्छा है ये ख़राब है, मुझे उस हिसाब से तो बाहर ऐसा नहीं होना चाहिए था. आई एम अ गुड बॉय, मेरे साथ तो अच्छा ही होना चाहिए था. Exactly, हाँ. बट मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा था. क्यों नहीं हो रहा था? मुझे लगता है यार व्हेन आई डोंट पोज अ थ्रेट टू देम, ये क्यों मारते हैं मुझे? फिर मुझे समझ आया दैट्स व्हाई दे हिट मी, बिकॉज आई डोंट पोज अ थ्रेट टू देम. Very interesting. ठीक है. देन आई स्टार्टेड बिकमिंग अ पर्सन हु पोज अ थ्रेट टू देम. मैं अकेला तो उतना नहीं कर पाता, बट मेरे साथ अब बंदे आने लग गए. हमारा ग्रुप बन गया. अब दिल्ली में तो हर कोई ग्रुप में ही घूमता है. ठीक है, हम भी, मेरे को भी ग्रुप सेफ्टी नंबर्स दिखा. और एक टाइम तो ये आया कि हमसे पंगा लेना दूर, किसी का होता था पंगा तो हम जाके कोई ग्रुप होता तो हम भिड़ जाते थे. सो वो मेरी एक अपब्रिंगिंग है जो कि मेरे को अपने घर वालों से नहीं मिली है. मुझे ज़िंदगी ने सिखाया यहाँ पर. उसके बाद और फिल्मों में भी आके तुम्हें ना यही मर्दानगी लगती है. यू थिंक दिस इज मैस्कुलिनिटी, कि तुम पेल रहे हो लड़कों को, पकड़ के धो रहे हो, पीट रहे हो. हाँ, देयर इज़ अ फन इन दैट. उस उम्र में हो सकता है, बट योर वर्ल्ड व्यू इज बेस्ड लाइक दैट. ये जो
बंदा आपने जिससे आपने देखा ना रोडीज़ में, उसका नाम, उसको मैंने एक्चुअली थोड़ा सा डिसोसिएट किया अपने आप से. उसका नाम मैं रखा है रोडीज़ रघु, क्योंकि आप उसे जानते हो उस तरीके से. रोडीज़ रघु आपने रोडीज़ में देखा है तो आप उसे जानते हो. दैट ही वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हु आई एम. मैं जो नॉन कन्फ्रंटेशनल टिमिड लड़का हूँ, वो बहुत ही कन्फ्रंटेशनल है. मैं जहाँ डर जाता हूँ चीज़ों से, वो रोर करता हुआ बाहर आता है. वो ही इज़ वेरी ऑपोजिट ऑफ हु आई एम. एंड दिस इज, यू मीन ऑपोजिट फ्रॉम नाउ और ऑपोजिट फ्रॉम द गाय ग्रोइंग अप? हाँ, ग्रोइंग अप. अच्छा, नाउ आल्सो. एंड यू बिल्ड दैट, यू सेड कि मैं ऐसा करूंगा. हो गया. अच्छा, हो गया. ठीक है, अंडरस्टैंड. हो गया. और वो बंदा, जैसे ब्रूस बैनर मैं हूँ और वो हल्क है, वो आके मुझे तब आता है जब मैं डर जाता हूँ या मैं ओवरवेल्म हो रहा हूँ, तो अब वो आएगा और वो मेरे को संभाल लेगा. बट आसपास सब तहस नहस है, वो नहीं किसी को देखता. ठीक है. इट वर्कड फॉर मी इन माई लाइफ, इट वर्कड फॉर मी इन माई वर्क. बाद में मुझे समझ में आने लगा कि इसके he is good for me, he is not so good for everyone else. मतलब people around me, he can end up hurting people, and I'm not into that. So then उसके बाद मेरा जो मुझे ना सिर्फ मैस्कुलिनिटी नहीं, मैस्कुलिनिटी को टॉक्सिक ही मत लो. मैस्कुलिनिटी पे ना there's a lot I can talk, which I'll start with saying one thing, which is one of my, like, very often I quote this. Chris Rock says, only women, children and dogs are loved unconditionally. Men are loved on condition that they provide. अगर आदमी काम नहीं कर रहा है, पैसे नहीं ला रहा है, तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, उसको कोई प्यार नहीं करता. ये सच है. प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना, ये आदमी की जिम्मेदारी इस पर थोपी जाती है आदमियों पे. तो कई बार आदमी इस तरीके से बन जाते हैं, ये जो वायलेंट, एग्रेसिव, उबर माचिस, माचो, ये चीज़ें सोसाइटी डालती है आदमियों पे. मुझ पे डली. मेरा ये था कि मेरे को छोड़, मेरे आसपास किसी को कोई टच नहीं कर सकता मेरे होते हुए. ठीक है. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये बनना पड़ेगा. बन गया. ये चीज़ बताई जाती है कि बेटे तू कर नौकरी, पढ़ाई कर, नौकरी कर, सब ठीक हो जाएगा. तू पैसे कमा, तेरी लाइफ चल पड़ेगी. योर वाइफ विल कम, वो घर देख लेगी, बच्चे हो जाएंगे, तेरे को सिर्फ नौकरी करनी है. ये मेरे को मम्मी पापा ने बोला नहीं है, बट मैंने ये देखा है. ये सोसाइटी की शेप्स एंड सिंबल्स आपको उस तरह तुम्हें समझ में बचपन से ही दिखता हुआ आ रहा है. ठीक है. मैंने किया, मैंने काम किया, तोड़ फाड़, बट मेरी लाइफ ऐसे चली नहीं. मैं एक जगह पहुंच गया, दुनिया मेरे बारे में बात कर रही है, पैसे हैं मेरे पास, सक्सेसफुल हूँ मैं, डिमांड है मेरी इंडस्ट्री में, आई एम मैरिड. बट दैट हैप्पीनेस दैट आई वाज प्रॉमिस्ड, दैट द सोसाइटी प्रॉमिसेस यू कि ये तू कर तो तू खुश है, वो नहीं है. यू हैव टू रियलाइज दैट सोसाइटी सेज बॉयज करो. दे लाई टू यू अबाउट व्हाई यू शुड डू इट. यू जस्ट हैव टू डू. जैसे सोल्जर है, तेरे को मरना ही है. ये नहीं कि भाई तू किसी दिन अपनी कंट्री का भला करेगा. नहीं, तू सोल्जर है तो जाके मार, तेरा काम है ये. दैट्स इट. सो इट्स दैट. सो आई रियलाइज दैट whatever I have been taught, and I am somebody who questions things. I did not question this. I did not. You just took it on. I questioned, is there a God? I questioned, are women inferior to men? I questioned, are two people living in together, are they living in sin? I questioned all these things. I did not question what is masculinity. I did not question. I was protecting women from men who were patriarchal towards them. जो patriarchal भी नहीं, lecherous, insulting of them, demeaning them. Sure. As a man, it was me protecting them. That's also a masculine thing. Sure. लोग सोचते हैं I'm anti-man. I'm not. I think men are for protection. But I never questioned what is masculinity. Till I realize it's not working for me. मैं जिस तरीके से हूँ, nothing is working out. So I'll tell you, आपने एक चीज़ पूछी, मेरे पास न्यूज़पेपर क्यों नहीं है. मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ है जो आपसे शायद अलग है. मैं एक एक्टिविस्ट हूँ. जब निर्भया केस हुआ,
फिर अन्ना हजारे का अनशन हुआ। हम्म। वो उसने हिला दिया मेरे को, मैंने काम छोड़ दिया। मैं और उस टाइम उन्होंने बोला कि ठीक है आम आदमी पार्टी बनाओ। उन्होंने बोला था कि यहाँ पार्क में बैठ के नहीं होता, आपके लॉज नहीं बनते, अगर हिम्मत है तो इलेक्शन लड़ो। अब ऐसे ललकार दिया। अब तो मैंने कहा भाई इतने दिनों से मैं बोल रहा हूँ और अब बंदे खड़े हो गए हैं, टीचर्स खड़े हो गए हैं, पोएट्स खड़े हो गए हैं, साइंटिस्ट खड़े हो गए हैं, एवरीबडी इज़ अप। अब मेरे को साथ में खड़े ही होना पड़ेगा। तो मैंने काम छोड़ दिया। 4 साल मैं सिर्फ इलेक्शन कर रहा था। सो इट wrecked my life. I am not a politician. It had consequences on my peace of mind, on my family life, on my personality. I became very, 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 very negative. From the politics? Because of that. Yeah, right. Because of engaging with it. उसकी वजह से एक हेट का एक फ्लड, ये तो रूडीज कुछ भी नहीं था यार, जो ये 4 साल पॉलिटिक्स की वजह से मेरे ऊपर आए। कहीं ना कहीं it desensitizes you to hate. You don't care? No, you build a barrier. From the hate that is From coming? the hate. You accept it. This is still social media hate. Social media mostly. Right. Mostly. So that also changes your personality. Of course. If your default setting has so much hate and negativity in it, वो मेरा default setting है ना, accepted है वो. Right. तो जितना मैं I'm fighting for a better world, I'm actually feeding into the negativity. Sure. So I realized that if I have to get control of my life again, I have to remove these kind of things that impact me like that. मैंने कहा कि मेरे को न्यूज़पेपर नहीं चाहिए, मैं न्यूज़ नहीं देखूंगा, मेरा कोई न्यूज़ ऐप नहीं है, टीवी नहीं देखता मैं, किसी चीज़ की जानकारी मैं रखता नहीं हूँ इस वक्त, and I'm happier. Look, I'll tell you why this conversation is थोड़ा सा distorted. Because देखो आप भाई ऐसे you cannot have masculinity without what you said earlier, the ability to pose a threat. ठीक है? Because the same man that defends is also, there is a, for every man that attacks there is a man that defends. Right? When the bad guys come, you need somebody to defend. Your ability to wield power in some sense is tied to masculinity. But on the other end, we also come from a context जहाँ पे उस ability का misuse abundant है. You know what I'm saying? Like, on one hand, you cannot have men that cannot fight or that cannot at least pose some amount of physical forbearance on the people around them. On the other hand, you cannot have men that are just violent either, that are just super aggressive, right? And so what I think is, like, how do you talk about the idea of being a man without either of those things? So, my father, उन्होंने मेरे सामने तो उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया, ठीक है, वेरी जेंटलमैन। एक बार मैं 15 साल का था और दिल्ली में मुनीरका में ही रहता था। रात को बाथरूम जाना पड़ा, मैं उठा और गया, कुछ 3-4 बज रहे थे सुबह, तो मैं बाथरूम गया और हमारे एक जिस कमरे में मम्मी पापा वगैरह सोते हैं तो वहाँ एक हीटर था, लाल जो कॉइल हीटर नहीं होता, Sure. उससे एक लाल लाइट आती है। तो मैं बाहर निकलते हुए बाथरूम से मैंने देखा उस लाल लाइट में पापा बैठे हुए, मेरे जूते पहने हुए हैं, सूट टाई पहन के बैठे हुए हैं। और मैंने कहा अजीब बात है यार, 4 बजे सुबह के क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं गया, पापा क्या हुआ, कहाँ कहीं जा रहे हो आप? कहते हो उठ के बैठो बैठा। मैं बोला कहाँ जा रहे हो? कहते मेरे पास एक और जॉब है बेटा, आई डू अनदर जॉब। BBC तेलुगु में वो न्यूज़ पढ़ते थे, वो उनकी टाइमिंग यूके से ऐसी थी कि इनको सुबह सुबह करना पड़ता। तो जब तक मैं उठता था ना, वो एक और नौकरी करके आके ही वॉज देन हेल्पिंग माई मॉम कट वेजिटेबल्स, क्योंकि 3 बच्चे थे, 2 तो ट्विंस थे, जो भाई साहब हालत बिगड़ जाए किसी की भी, और फिर एक लड़की थी। वो पापा सब्जियां काटते थे, मम्मी खाना बनाती थी, पापा हमें बस चढ़ाते थे, फिर मेरी मम्मी काम करती थी। माई फादर्स पेरेंट्स वर अगेंस्ट इट। ये 80s की बात है, 1980s में एक औरत काम कर रही है, ये नहीं था एक्सेप्टेड। मेरे घर वालों ने बोला कि क्या दिस इज़ अगेंस्ट योर मैनहुड दैट योर वुमन इज़ वर्किंग। माई फादर स्टूड अप अगेंस्ट देम फॉर माई मदर कि नहीं, इसको करना है, करे। ही इज़ फ्रॉम अ विलेज, ओके, इज़ स्मॉल टाउन मैन, बट वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व थे। मम्मी को ऑफिस छोड़ना, फिर वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट करके फिर मम्मी को पिक करके वो घर आते थे, ओके। और फिर खाना बना, हमारे
he participated in every. See, you understand the toughness I'm talking about of a man. Right. I haven't talked about violence at all. No. Yet, I have shown you what a man can do. A man can uplift everybody, support. But he also has to be happy, which is not, people don't talk about it. कि आदमी को भी खुश रहने का हक है. वो एक नई conversation है. But I'm trying to tell you that I choose to think of man in terms of this. Of course providing, of course supporting. Also sacrifice? Is that what you mean? Yeah, but that's not a masculine thing, no? Sure. No. I'm just wondering. I was just trying to give words to your thoughts. Like, of course provide, of course protect. But it doesn't have to be violent. It doesn't have to put someone down. Sure. You know, you can support with that. But अगर आ गई एक फैमिली पे कुछ चीज़, तो वो मेरे पापा अपने मम्मी पापा से लड़े ना, मेरी मम्मी के डिसीजन के लिए, वहाँ खड़े रहना पड़ेगा आपको. पावर सिचुएशन लाइफ में ऐसी है कि तुम जितने भी टफ हो जाओ, तुम अगर उनसे भिड़ोगे जो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है या पॉलिटिक्स में है या पुलिस में है, ठीक है, वहाँ तुम क्या उखाड़ लोगे यार, और क्या कर लोगे? मतलब तू लेवल ऑफ थ्रेट जो तुम पोज कर रहे हो वो एक लेवल पे ही है ना, उस लेवल के ऊपर यू आर नॉट अ थ्रेट. कितने डोले बना लेगा तो कितने, यू आर नॉट अ थ्रेट टू देम. द सोसाइटी इज इन अ वे दैट सो यू हैव टू. My definition of manhood has changed from I'm going to change this world to I'm going to protect my son from anything bad that could happen. That's it. And that has to be a very interesting shift. It's a life altering shift. अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. I don't care, भाड़ में जाए सब. I'm okay. My theory is, if I grow up in resistance to, suppose मैं बड़ा ही ठीक है ऐसे किसी को भी तोड़ देंगे, किसी को भी फोड़ देंगे, सपोज मेरा ये एटीट्यूड है, और मैं लाइफ के पहले 25-30 साल इसके साथ सर्वाइव भी कर लेता हूँ, मेरे को मेरे से बड़ा बाप नहीं मिलता जो मेरे को पीट के सुधार दे, ठीक है, मैं सर्वाइव भी कर जाता हूँ. द मिनट आई हैव अ चाइल्ड, गर्ल और बॉय, इस एटीट्यूड की शैडो धीमे धीमे उसको इम्पैक्ट करने लगेगी. और वो हो सकता है तुमसे डर पकड़ ले, अब वो डरपोक बनता जा रहा है, या हो सकता है तुमसे ये सेम चीज पकड़ ले और तुम्हारी लाइफ टाइम में वो नहीं मिला बाप, उसको वो बाप मिल जाएगा. लाइक आई थिंक as soon as you have a kid, your concerns magnify by a million times. कि bro हर चीज is being. मैं एक बात बताऊं तेरे को. हाँ. It's not because of my son that I have changed, but मेरे बेटे के आने के बाद मुझे पहली बार डर लगने लगा है कि कुछ हो जाएगा. मैं डरता हूँ, मुझे डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा. जो मैं किसी भी इलेक्शन में भिड़ जाता था, कहीं भी चला जाता था, चाहे सामने कोई भी हो, आई एम टेलिंग यू, आई डिडंट बैक डाउन. अब मुझे लगता है अगर मुझे कुछ भी हो गया इसका क्या होगा. डर क्या होता है मुझे समझ में आने लग गया. मैं ये नहीं कह रहा मैं उस वजह से बदलाऊं. डर एक चीज़ है जो आदमी को बदल देगी, होप एक चीज़ है जो आदमी को बदल सकती है. मेरी लाइफ ख़त्म थी. जब मेरी मैरिज ख़त्म हुई, मेरा करियर ख़त्म हो गया, इलेक्शंस में जाके देख लिया, क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला. थोड़ा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आई वाज जस्ट वेरी डिजेक्टेड, वेरी disappointed with like disappointed, मतलब I was jaded. Right, sure. मतलब अल्कोहल, सिगरेट्स, इन चीज़ों में मैं मतलब और क्या करता बैठा. Sure. Okay, so it's only after I realized, वो रॉक बॉटम में जाके मुझे समझ में आने लगी चीज़ें. थैंकफुली आई हैव अ थिंकिंग माइंड. मुझे समझ में आने लगी चीज़ें. मेरे को जब नेटली मिली, तब मैंने कहा कि यार ये, मैंने कहा ना कि इससे पहले मैं जिनसे मिलता था वो एक प्री कंसीव नोशन के साथ आती थी, इसके पास नहीं था. इनफैक्ट when we started dating, I leaned in to kiss her and she recoiled, ऐसे पीछे हुई, कहती वो I'm sorry I forgot you smoke. मैंने उस दिन से सिगरेट पीना छोड़ दिया. 9 साल होने आ रहे. Damn. That was the last cigarette. Alcohol, everything, because I realized she doesn't know who I am. She has no baggage of who I am. With her, I can be whoever I want to be. मैं कुछ भी हो सकता हूँ इस वक्त. I can be a non-smoker. I can be a non-drinker. I can be just the kind of guy I've always wanted to be. So I became that. You can have a fresh start. I had a fresh start. My theory, viewers, you were referring ना कि मर्दों को ये नहीं पता कि वो enjoy कर सकते हैं life. ठीक है? हाँ. कि वो खुश हो सकते हैं. खुश हो सकते हैं. Enjoy करते हैं. Right. उनकी enjoyment अलग ही. मैंने ना भी recently I had a conversation with Rahul Dua. You know comedian, probably you don't know. विनोद दुआ के बेटे हैं वो.
मैं विनोद दुआ का जानता हूं। अच्छा, विनोद उनकी दुआ, मल्लिका बेटी, दुआ, मल्लिका दुआ। राइट। राहुल दुआ इज अ कमेडियन, मैं उनसे बात कर रहा था और ना अचानक somehow automatically it gravitated towards talking about psychology of men and a bunch of issues there. तो कभी कभार ना मैं पॉडकास्ट के बाद एक मोनोलॉग देता हूँ where when I'm in conversation with you I'm limited by what we are talking, maybe I have something to say on top, so I put it at the end. And I was talking about this concept I learned from my life. I call this wartime men and peacetime men. Because war is very different from peace, particularly for us in a certain way. उस टाइम पे आपका एक्शन सेट बड़ा अलग है. There was a period in my life where I was very upset. Things were not going my way. Some may say I had anxiety. I had whatever amount of issues. And one day, bro, मैं ना अपनी girlfriend के साथ I'm at home and we are having some kind of a disagreement on something we have to select. And she's like, Prakhar, what do you want? I'm like, I don't know. What do you want? She's like, no. I'm asking you. What do you want? What do you want out of this? खाने का था कुछ. It escalated to a point. Something burst in me, and I was like, you know what, Clau? I don't know what I want. I have not known in months what I want. I know what I have to do. I know what I should do. There you go. I know what I have to. कि मैं सबका ध्यान रख लूँगा इस केस में, तेरे को भी पता नहीं लगेगा. I am not surprised. Right. And उसके बाद वो मेरे को कहती है, मैं पूरा बरस लिया ना, फिर वो मेरे को कहती है देख के, you should know what you want. What kind of a life is this? That day, I bookmarked this. मैंने फ्लैग कर लिया दिमाग में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्या बोला इसने, ये किस टाइप की बात है कि प्रखर तेरे को पता ही नहीं तेरे को क्या चाहिए. फिर कभी कभी हम लोग घूम रहे होते हैं when we are traveling because we are long distance. Before you move on, Yes, I'll tell you something. Boys are never taught to think about what they want. Their life is not about what they want. It's about what everybody else wants. What they need, everybody wants from him. Yeah. Continue. Right. तो हम लोग ना कहीं घूम रहे थे और हमारा ये बिकॉज वी बीन लॉन्ग डिस्टेंस अबाउट अ ईयर, वी विल मीट समवेयर इन द वर्ल्ड एंड ट्रैवल दैट. Lovely. एंड मेरे को 5-7 दिन तो यार काम के नशे से उतरने में लग जाते हैं कि काम करना है रोज सुबह उठ के न्यूरोटिक काम करना है. मेरे को कहती है तू खुश क्यों नहीं है? खुश हो भाई. ये एक अजीब सा क्वेश्चन है लड़कों के लिए. खुश हो भाई, क्या हो गया? स्पॉन्टेनियसली खुश हो. और मेरे को कहीं ना कहीं कनेक्ट किया ये कि यार जब मेरे को पता ही नहीं मेरे को खुश क्या करता है तो मैं क्या घंटा खुश होऊंगा? व्हेन आई डोंट नो व्हाट आई वांट, how am I going to be happy? Yeah, can I ask you something? It's a conversation, this thing only. What is happiness for you? Do you know what is happiness? Sure, I have many answers. Right? I think on a primary level, I want each and every person I'm directly responsible for to be their best. मतलब to the extent I don't even want that to come in. That is not your happiness. No. Is your mind will be at peace. It's a baseline requirement. ये तो मेंटल पीस की बात कर रहा हूँ, मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ. हाँ ठीक है. मतलब मेरा पॉइंट ये है, सपोज माई हैप्पीनेस इज X. इवन इफ आई गेट X, इट मीन्स नथिंग इफ माई मदर इज इन पेन इन सम वे. यू नो व्हाट आई मीन? सो दिस अ फाउंडेशनल कंडीशन. आई थिंक द वे आई कंसेप्चुलाइज रियलिटी नाउ इज कि देखो बॉस, हम लोग सब एक गेम खेल रहे हैं. वट एवर दैट गेम माइट बी. आप उसे करियर बोलो, आप उसको फेथ बोलो, वट एवर यू माइट वांट टू से. My game is a competitive game. You play with n number of variables and you're not playing against other players, you play against the world. Media is like that, especially in the YouTube do-it-yourself era. और मेरे को ये गेम जीतना है. Whatever that might mean in the sense, I want exactly how my communication should be to reach people. I want to impact people in a certain way. For instance, in every conversation I ask people about their relationship with their father because I want men to think about it. I think that's the beginning of the masculine wound, is how unwell you were with your father. Now, if I manage to play that game, I'm super happy. If I manage to win that game, I'm even happier. But it's truly just participation. मेरे को लगता है मैं participate कर पाऊँ. हाँ. What you said, you have been told you'll be happy if you win the game. I know I won't be. I know it feels the same. But your thought of your definition of happiness is something that is is grilled into you from childhood. Because of being men. Because of being male, हमें लगता है कि ये हमें करना है. हम जीत जाएंगे ये वाली जंग तो हम जीत हो गए. जाएंगे. हाँ. जीत ही खुशी है. Right. जीत अलग है. हाँ. खुशी अलग है. बट हमें ये फर्क नहीं सिखाया जाता है. बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप. You know what I'm saying? I know. हाँ. So even in relationships बोलते हैं यार, you don't need to love your wife. You have to have a wife. You can find sex outside. That's the patriarchal way of sure. of thinking. I really spent a lot of time thinking about happiness. मुझे समझ में आया joy क्या होता है and how is it different from happiness. Same or? यार जब मैं दोस्तों के साथ दारू पी रहा हूँ ना, मेरे को खुशी होती है. लड़कों के साथ बैठ के, वो तो is that happiness? फिर वो दारू खत्म हो गई, अगले दिन तो happiness है ही नहीं ना. फिर I'm not happy, I'm hungover. What is it? Then it's not the alcohol. Is it company?
कई बार मैं पक जाता हूँ लोगों के, तो फिर वही उसी आदमी के साथ रहूँगा तभी खुश हूँ, वो आदमी चला गया तो मैं खुश नहीं हूँ क्या? व्हाट इज हैप्पीनेस? इट्स नॉट अ पर्सन, इट्स नॉट अ थ्रिल. मैं काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था आई एम हैप्पी यार, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, रात भर पार्टी कर रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, जगह देख रहा हूँ, मेरी लाइफ देखो यार, कभी थाईलैंड में शूट कर रहा हूँ, कभी ऑस्ट्रेलिया में शूट कर रहा हूँ, कभी यूएस, ब्राजील, दुनिया घूम रहा हूँ मैं. इट इज अ वेरी aggressive rush. It's not happiness. Do you understand me? Even that fame is not happiness. It's fame. This is joy. This is mental peace. मेरे यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. Am I happy? No, I'm at peace. Is peace part of happiness? Yes. Can you remove peace and still be happy? I don't know. Yeah, I mean that's what I think. I think ये चार अलग boxes नहीं है. They kind of build on top of each other. Because to your point, I mean I'm sure you've lived away from friends. You've lived away from family. ठीक है? यार सही में ना मैं कह रहा हूँ मेरे को तो दारू पसंद भी नहीं है frankly. ऐसा नहीं है पीता नहीं, मेरे को तो पसंद भी नहीं है. बट दोस्तों के साथ एक ड्रिंक पी ली ना, सब इधर उधर चले. Like what I'm saying is the memory of it, the experience of it. There is happiness in that. I'm not going to take that away. I know the alcohol is for enjoying the moment. I know the company is for enjoying the moment, but the memory of it is very, very happy later on. Are you happy? I would think so, yeah. I don't have any reason to think I'm sad. Do you have any reason to think you're happy? Yeah, I have multiple reasons to think I'm happy. Because this question is asked to me, and actually for the first time in my life, maybe since I started thinking, I can say I'm happy. I don't have the things that I used to have. ठीक है? But I'm happy. I wasn't happy then. क्या चीज़ें खोने से खुशी मिलती है? No. कोरिलेशन और कॉजालिटी में बहुत फर्क है. But I am happy doing something. I am happy being a certain way. I am happy with where my life is right now. I am happy playing with my son. I'm happy. I don't have my own house. I mean, I don't live in my own house. Sure. I live on rent. Okay. Now, I'm happy. Yeah. कोई लोग बोले तेरा खुद का घर नहीं है, हाउ तू कैसा मर्द है? You know what I'm saying? Prerequisite to being happy is that you should have provided a house, गाड़ी होनी चाहिए. You know. I know exactly what you mean. एक requirement है, वो checklist check करो, फिर खुश होना allowed है, उससे पहले मत खुश होना. हाँ, वो सब था. Right. I had it. I wasn't happy. Right. So this happiness is a big thing, यार. और तुम्हारे जो viewers हैं ना, मैं भी चाहता हूँ ये सोचें. Please think about it कि तुम्हें क्या पढ़ाया गया है खुशी के बारे में, और क्या तुमने खुद से पूछा है? तुम्हें खुद से पूछने का हक है क्या? Have people made you feel you have the right to ask yourself what makes you happy? और क्या तुम पैदा हो जाओ, बिल्स भरो, मरो, ये लाइफ है तुम्हारी? I was talking about wartime and peacetime men. पता है क्या है? मेरे को ऐसा लगता है. See, I was also 25 when masculinity as a discourse flooded the internet. This is 3 years ago. Yeah. Right? It flooded. Like it was everywhere. Andrew Tate's face was everywhere. There were clones of him talking about what being a man is. So in my peak 20s, I'm experiencing this discourse. I had a lot to think about this. And I realized कि ना अगर आपको मर्दानगी को समझना है, आपको you have to use these dichotomies. जैसे peace time, war time. Because क्या है? Before certain bad things happened in my life, I was peacetime Prakhar. Never afraid, no worry, कोई responsibility नहीं यार. पापा देख रहे हैं, मम्मी देख रही हैं, भाई बहन देख रहे हैं, मैं अपना जीऊंगा, मैं विदेश जा रहा हूँ, ठीक है, मैं लाइव एक्सपीरियंस करूंगा. Then something happens, and you know the shift was so remarkable, bro. Before something bad happened with me, I would relate to my mother a lot more. कि मम्मी ऐसा बोलती है, मम्मी ये, मम्मी वो. After that, instantly my papa. क्योंकि मैं कह रहा हूँ यार क्या आदमी है, इसने तो ऐसी 50 चीजें देखी है, मैं तो एक में ढेर हो रहा हूँ, और ये फिर भी मुस्कुरा के घर आता कहता है अरे बेटा कैसे हुआ, उसको ये नहीं लगता. सो दैट शिफ्ट वाज वेरी प्रोफाउंड. व्हाट आई रियलाइज्ड फ्रॉम बीइंग विद माय गर्लफ्रेंड, नाउ माय फियांसे, इज बॉस यू हैव टू लेट गो ऑफ वॉर टाइम प्रखर व्हेन पीस कम्स बैक. I learned this a very राइट. एक टाइम है जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन होना है. तुम बहुत ज्यादा अलर्ट पे रहते हो हमेशा. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? Everything is a हमेशा हाइपर सेंसिटिव कि कुछ भी पंगा ना हो जाए तुम. उफ यार भाई मैं तो आज भी मेरा फोन अगर टाइम पे टाइम बज जाता ना, मेरे को एंजाइटी रहती है घर से फोन आ रहा है, कुछ हो गया है, लाइक आई एम लाइक कुछ थ्रेट है. एंड इट्स सच अ वियर्ड रिएक्शन. माई फोन कैन नॉट बी इवन ऑन साइलेंट व्हेन आई एम स्लीपिंग, बिकॉज इफ इट रिंग्स आई कैन नॉट स्लीप द एंटायर नाइट नाउ. Something hits me in the back of my head when I'm like, कुछ गलत हो सकता है प्रखर, be awake, be alert, you need to be here. Right. That is what I'm Prakhar. Right. And
तो वॉर टाइम प्रखर मे बी फाइट्स एज अ मेटाफर, पीस टाइम प्रखर डांसेस. हाँ. और वो शिफ्ट आसान नहीं है भाई स्विच करना यार. Imagine what it must feel like to be in a relationship with wartime Prakhar. Who, do you know what I'm saying? Yeah, I know. Because that guy is a mess. I don't understand why my woman stuck around. Yeah. मैं तो उसे कहता रहा तू छोड़ मेरे को, तू जा, मैं तो अभी बर्बाद हूँ. तू मेरे साथ, she dated me bro, 4 months into it bad things started happening, right? मैंने बोला तूने तो मेरे को देखा ही नहीं है कभी असली यार खुश. अब वो मेरे को मिलती है कहती तेरे को तो मैं अब समझ रही हूँ तू कितना खुश हो सकता है. It took me years to get over that. Men fight their entire lives in their head दारू पी पी के, सिगरेट पी पी के कि मैं इस चीज से निकल सकूँ भाई. क्योंकि उनको ये बोला जाता है दारू पी खुश रहेगा, काम कर खुश हो जाएगा. हम लोग काम करते हैं और दारू पीते हैं. That's what we do. Right. Now my question to you is, जब तुम एंड्रू टेट वगैरह की बात कर रहे हो, and that's the concept of masculinity. Why do you think that is? Why is Andrew Tate and this whole एक manosphere करके एक चीज, red pill and all that? हाँ. Why is it attractive to men? Bro, I have so much to say to that actually. There is a lot of internet history involved. कॉफी आ जाए मैं बताता हूँ. हाँ. तो मैं ना भाई I felt very socially rejected. Growing up in school, I was on the heavier side of things. मेरे सब मर्द दोस्त थे and हम लोग रोडीज खेलते थे. ठीक है, तो like there was very little female interaction and very little out-group interaction. And so I discovered the internet faster than my peers. While my peers were busy talking to each other, मैं Orkut पे वो forums पे ऐसे hacking सीख रहा होता था, coding खुद से सीख रहा होता था. And why that's relevant is because I got onto internet history very fast. I don't think there's a course called internet history right now, but 10 years down the line, there has to be. There should be. There has to be. Red pill, which is your symbolism from Matrix. कि if you take the red pill, you know, truth is revealed to you. एक MGTOW होता है, men that go their own way, which is a more increased version. And manosphere is called the total combination of this. There used to be saner voices that came from these ends. एक एलियट हल्स होता था, वो वर्कआउट करना और अपनी बॉडी को एनर्जाइज करना एंड थ्रू दैट चैनलिंग योर मैस्कुलिनिटी सिखाता था. मेरे को याद है अर्ली ऑन. देन जॉर्डन पीटरसन केम हु टुक अ वेरी फादर लाइक अप्रोच टू टेलिंग हिज सन हाउ टू लिव योर लाइफ. और उसमें भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी थी, बट लार्जली ही वॉज क्लीन. Andrew Tate was a repackaging of Jordan Peterson in a very different packet. Uska, he understood the internet is here to hate. His first thought was, why don't I control the hate that comes my way? So instead of being victimized by what shit came to him, उसने बोला मैं प्लांट कर देता हूँ कि मैं ऐसी 6 बातें करूंगा जिससे तुम सड़ोगे और तुम इस बारे में बात करोगे और मेरा विवाद होगा, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी. And he is actually very, very articulate. Nobody can take that from him. He can speak his point out very, very well. And he addresses specifically nations, ऐसे देश जहाँ पे masculinity actually काफी हद तक खराब कर दी गई थी. Peacetime men had slept for too long even when war had arrived. And so he won because somebody needed to talk about masculinity in a polarizing way. And I mean one without the moral implication of winning. Is that okay? Right? So in India... What is the appeal? The fact, do we want to be polarized? Why do we want to be polarized? Okay, let's ask that. I think as a fundamental human requirement, all saturation can only be desaturated with polarization. अगर हम फनी करेंगे ना, इवेंचुअली हमें डार्क करना पड़ेगा क्योंकि सब लोगों ने फनी तो कर दिया, सारा स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, अब थोड़ा एज. दैट्स जस्ट द ह्यूमन नेचर, वो ह्यूमन नेचर वाला पार्ट है. बट ऑल्सो इट ग्रैब्स अटेंशन एंड स्प्रेड्स फास्ट. Why? वही आउटरेज मशीन, यू नो, यू आर प्लेइंग ह्यूमन इमोशंस एट स्केल. पोलराइजेशन इज प्लेइंग. हाँ, यू आर राइट. बट देयर इज वन मोर थिंग इसके साथ. पीपल लाइक एंड्रू टेट, वो अकेला नहीं है. हाँ. They are making it okay for you to be. वो तुम्हें वैलिडेशन दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस मिल रही है लड़कों को. क्योंकि दुनिया ना आदमियों को बोलती है कि एक तो किसी काम का नहीं अगर तो कुछ कर नहीं रहा है. ठीक है. रिलेशनशिप, अगर आप टिंडर पे जाओ फॉर एग्जांपल, 90% मेल्स है वहाँ, और जो एक औरत है उसको दिन में 36,000 लाइक्स आते हैं. एक आदमी को 12 महीने में एक भी नहीं मिलता होगा. राइट. डिस्प्रपोर्शनेट है. रिजेक्शन उनकी लाइफ में है. उसके घर वाले दुत्कार रहे हैं उसे, उसकी बीवी है ही, गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसको दुत्कार रही है. उसका कोई और बंदा बड़ी गाड़ी लेके आ गया तो शी स्लीपिंग विथ हिम. इस बंदे को कहीं से ना एक्सेप्टेंस ऑफ बीइंग अ मैन, ही इज नॉट द ओनली वेयर ही इज गेटिंग. उसको जहाँ ये वैलिडेशन मिल रही है कि यू आर ओके ब्रो, वो सब चूती हैं. इज गाइज लाइक एंड्रू टेट. Sure. Yes, he's articulate. There's one more thing he does. It is, he makes you feel accepted in your weakness. In your जो तुम सोचते हो ना कि
मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काम का हूँ, हाँ गलती मेरी नहीं है। ये वैलिडेशन सोसाइटी नहीं दे रही है, पेरेंट्स भी नहीं दे रहे हैं मोस्टली। और मर्द की लाइफ काफी अकेली है, वो मर्द अपना, की हाँ, लाइफ में है ही नहीं है। अगर आप ये बोलो ना कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट अबाउट बैड बॉयज, हु आर बैड बॉयज एंड व्हाई इज इट दैट अ स्वीट गर्ल ऑलवेज falls for the bad guys, हाँ, and rescues them? Let's say for me, I have the image of being a bad boy. My wife Natalie, she's the opposite. She's Right. this sweet, angelic person who has, quote unquote, rescued me in many ways. Bad boys मेरे थिंकिंग के हिसाब से जो मैंने स्टडी किया है, इज पीपल हु आर रिजेक्टिंग द मोर्स ऑफ सोसाइटी बिकॉज दे फील रिजेक्टेड। वो भी कहीं ना कहीं रिबेलिंग अगेंस्ट सोसाइटी ही कर रहे हैं। दे नॉट ऑल आर नॉट रेबल्स, कई चीज़ों में देयर अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है, हो सकता है, बट when they meet a woman who accepts them, who loves them for who they are, they will soften for her. yeah. Completely soft रहेंगे उसके लिए. Mothers, that's why men are into mama's boy बोलते हैं, क्योंकि वो प्यार, वो acceptance, unconditional life में नहीं मिलता उनको फिर. You never get it, not in school, not at work, not in your marriage, not from your kids, not from your friends. कहीं नहीं मिलता, औरतों को मिलता है. I am not comparing कि नहीं औरतों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा it's not about women, we're talking about men now. Right. ये जो चीज़ है ना, अगर हम if we give people validation, make them feel okay, not just judge them on their value of what they bring to the table, quote unquote, then that appeal of this toxic masculinity will go away. Sure. You were saying that the driving emotion जो इतने लोगों को खड़ा कर देता है उसके फेवर में is actually him identifying कि यार लड़कों को वैलिडेशन दे दो, बस इतना ही तो बोल दो तू ठीक कर रहा है भाई, कोई नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, बहुत चीजें हैं दुनिया में, समझ रहा है, बिल्कुल अंधेरे में अकेला ना हो जा. और वेस्ट में इंसान ही बहुत अकेला है ब्रो, राइट? लाइक इट्स नॉट लाइक अस, it's not like us where we hang out and talk, right? You have to schedule times to meet. And I have seen one too many friends slip through the crack. कि भाई उसका बस मैसेज आना बंद हो गया, उसने नशे बहुत कर लिए, अब वो साइकाइट्री में बंद है या पुलिस में पकड़ लिया, his life just fell apart, right? और उस लड़के को ये सुनना कि तू ठीक कर रहा है, मैं समझ सकता हूँ that there is some merit to that. और सब भाई इंटरनेट पे जितने भी स्नेक ऑयल या किसी भी टाइप का स्पीकर आएगा ना, the first thing he'll do is validate his audience. We understand that is how the game works. So I think the reason why he worked in the West और इंडिया में उसका इतना impact नहीं था was for this exact reason, क्योंकि वेस्ट में वो प्रॉब्लम थी. And you know what is very interesting to note, I was telling my friend, आपको भी मैं कह रहा था कि अब cancellation is becoming a mega right-wing phenomena in America in the internet spheres. This is a pendulum swing that invariably happens. So 2016, 17, 18 में उस पूरे डिस्कोर्स में, एंड्रू टेट वाले डिस्कोर्स जो उस दुनिया का डिस्कोर्स था, उसमें men and women are not different, they are the same, you can switch between men and women anytime, that's your life. To now with the Andrew Tate stuff, men and women are the biggest difference in the world. वो बिल्कुल सेम हो ही नहीं सकते. वो enemies की तरह देखते हैं उसे. हाँ. For them, he makes them out to be the enemies. That is toxic. 100% spot on. And पर आप देखो फॉर्मेट कितना सिमिलर है. They're playing with the same thing दोनों एक्सट्रीम में. So everything that was stupid about left-wing interactions before will become stupid about right-wing interactions going further. Andrew Tate is a response to a certain societal phenomena. That's why he is that big. But growing up within this discourse of masculinity, I've thought about it quite a bit. ये wartime और peacetime वाला बड़ा interesting है. But you know, I was recently hanging out with this very interesting spiritual mystic, and he said something which transcends all these boundaries but makes sense. वो कहता है there is a waterway and a fireway. Okay. Fireway is that energy rising up and you wanting to exert your will on society. Waterway is taking how the flow and the current happens. And you need to have both. वरना आग जला देगी, पानी डुबा देगी. That's how I've come to understand कि बहुत जरूरी है for us to be able to have fun, to be happy, to want what we want. My birthday is next week. My girlfriend's like, what do you want for a gift? I'm like, I don't know. How do you decide this? You know what I mean? Every man will identify with what you're saying. What do you want? I don't know. Just hang out with me. मैं क्या बोल दूंगा यार, थोड़ा टाइम निकाल ले मेरे लिए, ठीक है? केक काटते हुए भी अजीब लगता है, मेरे को देख रहे हैं सब, मेरे को देख रहे हैं, केक काट रहा हूँ मैं. कॉम्प्लीमेंट कैसे लें? Like, you know? आदमियों को कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते ब्रो. Do you remember a compliment that's given to you? यार, I'm lucky in that way. No. हाँ. Do you remember? Sure, sometimes, once in a while, हाँ. You remember because they happen so rarely. Right. I'm not kidding you, bro. I'm not kidding you. आदमियों को कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते, आदमियों को फूल नहीं मिलते, आदमियों को तू ठीक, वो दिलासा नहीं मिलता, वो तसल्ली नहीं मिलती.
नहीं मिलती. वी मैन आर नॉट वैल्यूड. हमें लगता है कि तू मर्द है तो ठीक ही होगा. डोंट बी अ गर्ल. लड़की मत, मर्द बन. सक इट अप. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. माई लाइफ वॉज फॉलोइंग अपार्ट. मैं मर्दानगी मेरी कहाँ डालूं मैं भैंस की. सब गिर रहा है, मैं मर्द बन के बीच में खड़ा हूँ. हाँ बताओ. राइट. हाँ एग्जैक्टली. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्राइंग इशू? Men cry, men don't cry. यार आई वॉज बॉर्न इन अ टाइम. हाँ. मैं जेन एक्स हूँ, ठीक है. वर्किंग आउट वॉज नॉट मैस्कुलिन. Right. वॉज द ऑपोजिट ऑफ मैस्कुलिन. मैं उस जनरेशन से हूँ जहाँ मजाक उड़ाते थे ये साला अपने आप को देखता है नंगा होके शीशे में. It's kind of funny though. It is funny. It's fucking funny, man. The thing is, so you know, we had to be like, I don't care. मेरे को actually somebody had written during Roadies जब शुरू होने लगा था. I had gone to Bangalore. She said, I had written this article about you. Raghu's bringing back the retrosexual man. उस टाइम metrosexual man होता था. हाँ. जो अपना ध्यान रखता है मेट्रो से. हाँ. बड़ी बना के मैंने रखता है. कहा retrosexual. It's a time when men were men, cavemen type. You don't care how you look. Basically she was telling me, उस टाइम मैं ना शेव किए बगैर मैं रात भर काम करता था, सुबह बैठ जाता था ऐसे बिना सोया रोडीज ऑडिशन कर रहा होता था अपने ही कपड़ों में. You know what I'm saying? Same clothes everywhere. Right. So that was a retrosexual man when men didn't care. So you can imagine how non-masculine crying would have been for me growing up if working out was feminine. Right. Right? Tough. मैं 15 साल रोया नहीं. For 15 years I didn't cry. Like you physically held it in. I physically could not cry. You telling me like even when things were bad, there is no private crying also. No, I want beyond a point. I said I fucking want to cry. जब रोना आता है ना तो सिर्फ उपासी आ जाती है. एक yawn आता है और फिर चला जाता है वो. Right. It just goes. You want somebody to hit you so that probably something happens. Man, the crying stopped 15 years. Then I cried. काफी रोया. I don't. This whole men don't cry thing is very toxic. Yeah, very toxic. Actually, आदमी में problem पता है क्या है? This is why I wanted to do like a podcast or a conversation about men. Is that we are a very special group. जहाँ saying I'm not okay is a problem, is looked down upon. Sure. Asking for help is what's the word? Is burdensome. हाँ कि मैं क्या help, कैसे help मांग लूँ. मजाक उड़ाते हैं तुम्हारा. मजाक. अबे मर्द बन यार. This whole don't. These feelings are feminine. Feelings, man. Do it. That is an issue. I'm not saying men should initiate divorces, but I think men deserve love. Men deserve compliments. I really do. If you're a woman who's watching this, do better. Just do better. Tell the men in your life that you love them, give them compliments, give them love. Trust me, they don't have it. And it's your fault. You know, you were asking me the last compliment I got. I was just at a wedding and this dude friend I just encountered at that wedding, destination wedding, मेरे पास आया कहता है यार तू बहुत सुंदर है. So just goes on to say, नहीं, first of all, मैं मान नहीं रहा. I'm not buying into my own hype, but my point is, just goes on to say how far it's been like 15-20 दिन हो गए भाई इस बात को. You are like भाई मैं सुंदर हूँ. बाथरूम में हंसते हुए कह रहा है मैं fuck bro मैंने कुछ किया है क्या? जिम जा रहा हूँ because it changes everything. It is true. It is true. कुछ तो बात है मेरे में. अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा हूँ अब तो तू मेरे को ज्यादा प्यार करती होगी. अच्छा एक और चीज मैं बात करता हूँ. अब यहाँ अब थोड़ा सा मॉडल होने वाला है. हाँ. वर्क लाइफ बैलेंस जो काफी अब चर्चा में रहा है. व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? डू यू मीन स्पेसिफिकली वो 70-90 आवर्स वाला कह रहे हो या जनरली? जनरली यार देखो मेरे को ऐसा लगता है if you are not in love with what you do, please don't do it for longer than a certain amount of time and kill the rest of the possibility for you to have fun and joy in life. This is not an option for most men. Right. We'll come to that. I'm talking about theory and then we'll move to the practice. If you love what you do, the only thing that should come probably before is non-negotiables like family. मतलब अगर मेरे को मेरा काम पसंद है मैं 24 घंटे कर लूंगा except पापा मम्मी like whatever I have to take care of या इन लोगों का ध्यान रखना है. It's a very different story when you are the risk taker and the passion bearer and when you are not the risk taker and the passion bearer. The statement applies unequally to owners of capital and workers. It is not the same thing, first of all. In practice, I think India is a largely unfair working ecosystem. अगर 8 घंटे की नौकरी है तो 8 घंटे बिठाओ, अगर उससे ज़्यादा बिठा रहे हो तो ओवर टाइम दो. पर यहाँ पे गधा मजदूरी बहुत ज़्यादा है. तो it is not an option because if you say I will not sit for 8 hours or 12 hours in some cases, I have very bad experiences working as a CA article. हमारे यहाँ ग्लोरीफाई पता है ऑफिस में होता था कि मैं रात को क्लाइंट साइड पे ही सोया. मैं करता हूँ यार. मेरा 20 साल तक मेरा ये था कि मैं सोता ही नहीं हूँ.
शेरलॉक होम्स, ना वो खाता था ना वो सोता था, जबकि मैं नहीं सोता था, मैं खाता नहीं था। 3 दिन 3 रात एवरी वीक, मंडे से लेकर मैं थर्सडे को ही सोता था, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 72 आवर्स I'd be up। एक बार 5 दिन चला गया। सो या मतलब तुम्हें गर्व होता है इस पर कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं तो सोता है, मुझे नींद नहीं आती, मैं जो इतना काम कर सकता हूँ, बिकॉज हार्ड वर्क एंड बीइंग इज सो connected to being a man, it's so glorified. You know what I'm saying? Things that I can beat somebody up. Because as a soldier, as somebody physically I can dominate somebody. I can work hard. I can provide so much. This is the value that society puts on man. Yeah. And that is what you become obsessed with. And that. So एक बात बता, हमारा best case scenario क्या है? काम ही काम है एक तरीके से ना। सक्सेस तुम तो हो जाओगे तो काम बहुत आएगा, और आएगा, कम नहीं हो जाएगा, कम नहीं होगा, वो पीक रुकती नहीं है, वो और ऊपर चढ़ती है। वो हमारा एस्पिरेशन है ना। ठीक ठीक, हाँ। तो वर्क लाइफ बैलेंस तो है ही नहीं ना। Right. यू आर एस्पायरिंग फॉर मोर वर्क लेस लाइफ। राइट राइट दैट्स योर एस्पिरेशन, दैट्स योर बेस्ट केस सिनेरियो। राइट। सो एक तरीके से मैं सोचता हूँ यार, वर्क लाइफ बैलेंस तुम हटा के ना सिर्फ अपने बॉसेस का फायदा कर रहे हो। बॉसेस मतलब दोज हु ओन द, जिनके पैसे बन रहे हैं। राइट। दूसरा ये कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे काम करके मिलेगा। मेरा बाप तो नहीं है, मैं इस फैमिली में पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं उस फैमिली में पैदा नहीं हुआ, मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं अब इस शहर में आ गया हूँ अकेला, अब मैं काम करके निकलूंगा यहाँ से। मैं वर्क लाइफ बैलेंस नहीं ढूंढ सकता भाई, जो है मेरे को करना पड़ेगा, जो मुझे चाहिए वो लेने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। आदमियों को ये कि यार और कोई तरीका है नहीं। पर यार एक बात बताओ, आई थिंक इट्स इवन अ प्रिविलेज, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज अगर आप कंप्लीटली ऑनेस्ट हो जाओ एंड यू टॉक अबाउट फीमेल इनसिक्योरिटीज, वेल वी आर मेन, यू नो, टू व्हाटएवर एक्सटेंट वी कैन, women have a clock to their insecurity. Yeah. Right? That beauty is so ingrained into their culture that past a certain point. None of this is taking away or dismissing or minimizing anything women go No, through. that's not what I'm saying. My point is, for women, Yeah. they don't have a fighting chance against their insecurity. No. We can fight it out by probably working harder, making more money and so on. My point is, on some level, it is even a tragic privilege that men have, that we can work our insecurities away. But that's okay. See, अभी भी तुम अपना वैल्यू सिर्फ काम पे कर रहे हो ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ योर पावर टू प्रोवाइड, उसी पे ला रहे हो ना अपना। मैं यूनिवर्सल बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनल साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सल तो ये बिल्कुल नहीं है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हाट विल यू डू बीइंग एट होम इफ यू आर नॉट वर्किंग? हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर टाइम? दैट्स अ वेरी रियल क्वेश्चन। इफ यू हैड इनफ मनी एंड यू डिड नॉट हैव टू वर्क, इज दैट अ रियल क्वेश्चन? आई कैन आंसर। या प्लीज टेल मी। फर्स्टली, आई एम नॉट सेइंग वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको बाद में आते हैं। पहले बता, अगर मैं घर पे हूँ, आई विल डू व्हाट आई वांट, आई विल डू व्हाट आई वांट। इफ आई वांट टू वॉच समथिंग, आई विल वॉच समथिंग। इफ आई वांट टू राइट, आई विल राइट। इफ आई वांट टू लर्न द गिटार, आई विल डू इट। इफ आई वांट टू ट्रैवल, आई विल ट्रैवल। इफ आई वांट टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, आई विल डू इट। व्हाई इज दैट बैड? इट्स नॉट बैड। से यू आर अलाउड टू डू दैट। डू यू थिंक यू कैन डू दिस टू इन्फिनिटी? यार, जो एक स्पोर्ट्समैन होता है ना, एथलीट, he needs to push his body to the limit. Sure. हमें दर्द होगा, मैं रोज देख के दर्द होता है उनकी ट्रेनिंग। Sure. But that's who they are. As an artist, you have to express yourself. मैंने पैसे के लिए नहीं काम किया है। रूडीज का मेरे को पैसे नहीं मिला। I never got paid for it. At all? At all. Like zero money? Only my salary as an employee. Sure, okay. Of course, last 2-3 years of when I got paid for 2 years. That's besides the point. The point is, I always did it for my passion. ठीक है, मेरे को सुपरस्टार अवार्ड दिया MTV ने, उसमें शील्ड था, उसमें नाम भी नहीं था मेरा, मैं खुश हो गया। ठीक, ये मेरी मेहनत का फल था, ये मेरे ख्याल से काटा मेरा। ठीक है, बट नॉट MTV, लाइफ ने सोसाइटी ने। भाई तुम्हें ऐसा फील किया जा रहा है कि तू सुपरस्टार है, कि तूने काम कर दिया, मगर मिला तेरे को ऐसा कुछ नहीं कि तू अपने फैमिली को घर जाके उनकी लाइफ बेटर कर पाए। तू था सुपरस्टार, लेकिन उन्होंने कह दिया, उनका फायदा हुआ है, किसी का प्रमोशन हो गया है। ठीक। सो माई पॉइंट इज, आई विल डू इट लाइक आई हैव डन इट विदाउट, फॉर नॉट मनी। मुझे जो करना है ना, मैं वैसे भी करूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं, अगर आप पूछोगे कि घर बैठ के तुम बिना काम किए कब तक बैठ सकते हो, काम का डेफिनेशन क्या है? आई नो यू आर अराइविंग एट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, टेल मी इफ दिस मेक सेंस। मैं समझता हूँ मेरी 2 लाइफ है, एक प्री मनी, एक पोस्ट मनी। एक मेरे को तब तक काम करना है जब तक मैंने आई हैव नॉट प्रूवन टू माई सेल्फ दैट आई डोंट हैव टू वरी फॉर मनी, से इट इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करोड्स, राइट? उसके बाद मैं वो करना चाहता, पहले तो मैं बैठ के पूछूंगा 1-1.5 साल, साले तू करना क्या चाहता है? भग तो लिया तू, रैट रेस कर ली तूने, बना लिए 5-7-8 करोड़ रुपए, अब तू कहता है तू सिक्योर है, ठीक है?
अब बता अब क्या मन है, और फिर वहां से जो निकले वो निकले। एग्जैक्टली तुम जो बोल रहे हो ना, मैंने अपने डैड की बात बताई थी, वो 2 नौकरियाँ थी, ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट राइट एंड रात को न्यूज़ कास्टर, ही वाज पैशनेट अबाउट तेलुगु, ही वाज एन एक्टर, मतलब नाटक करते थे, लिखते थे, ट्रांसलेशन होता था। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, बच्चे पढ़ गए, तीनों की शादियाँ हो गई। पापा ने कहा अब नहीं, ही स्टार्टेड डूइंग तेलुगु वॉइस ओवर्स, ही स्टार्टेड राइटिंग इन तेलुगु। वो जाते हैं ना एक उस पर ऑटो पकड़ के जाते थे, एक सेशन महीने में, एक सेशन क्या 600 रुपये 1200 रुपये 1 घंटे, जो उतना बजट है, 2000 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। हाँ। और वो भी ही वॉज सो हैप्पी बिकॉज ही वॉज डूइंग वॉट ही वॉन्ट्स। जो तुम कह रहे हो ना, उसको जो रैट रेस कर रहा था, उन्होंने शादी की, बच्चे पाले, कर दिया, फाइन लास्ट 15 years ऑफ हिज लाइफ उन्होंने अपनी की, बट उन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। फॉर मी या अगर तुम पूछोगे कि घर बैठ के क्या करोगे, तुम घर बैठना ताना क्यों मारते हो आदमी पे, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ऑफ कोर्स यू हैव टू, एवरीबडी हैज टू अर्न यार, तुम्हें जीने के लिए पैसा चाहिए, मगर वर्क लाइफ बैलेंस, देखिए तुम्हें अगर सक्सेस चाहिए तो काम करना पड़ेगा, मगर काम करके खुश नहीं होगे तुम, खुशी के लिए तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। जैसे मेरे पापा ने किया, मेरे ख्याल से दैट्स, मेरे को देखा हुआ एग्जांपल ये दिख रहा है, तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं कुछ और देखूंगा, कुछ और महसूस करूंगा तो मैं बता दूंगा, बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू दैट फॉर मेन यू हैव टू finish your responsibilities and then think of your happiness. Right. A lot of people they can't just say, yeah, I'm doing this because it makes me happy. Well, you have wife, you have kids. And bro, the thing is, if you, the scam in follow your passion as an idea is that eventually your passion becomes work faster than your work becomes or stays your passion. वो इतना पत्थर बन जाएगा, suddenly तुम बोलोगे, अरे अभी तक तो मैं मौज कर रहा था, अब मैं सोच रहा हूँ ये क्या सोचता है, और मैं सोच रहा हूँ वहां से पैसे आएंगे कि नहीं, और सडनली मेरी आर्ट अब कचरा हो गया। What's my next move? Right. So I don't even think there is a point in keeping. मैं कहता हूँ जब तुम्हारी लाइफ फर्स्ट लाइफ में, प्रखर की फर्स्ट एडल्ट लाइफ में कंसर्न मनी है, be clear about it. Have values, have ethics, have a very clean boundary that you will not cross, but be very clear about it. Don't pretend that you are a soulful artist who also wants to get rich. If you want to get rich, just say it. First of all, be honest enough with yourself. मैं publicly भी नहीं कह रहा. And I genuinely think the wonders of today's time is, मेरे पास I'll do 2 or 3 careers. First career is this, second career we'll see. Like I genuinely wonder, bro, थोड़ा stupid है. हाँ. No, stupid नहीं है. This is very good. नहीं, what is good way of thinking? What I'm saying is, what I'm going to follow this is very stupid. Tell me what you think. मैं पता है सोच रहा था, मैंने बोला ठीक है यार, प्रखर मीडिया चैनल भी बना दिया. 1 साल में we are one of the biggest podcasts in the country, right? 2-3 साल में और भी बड़ा हो जाएगा. इसके beyond मैं कोई मीडिया लेवल पे काम करना चाहता हूँ, या do you think you're capable of solving a bigger problem? And you know, I was just private musings. I'm not taking this very seriously. Then I was like, यार, what is the hardest problem to solve in India right now? And I was like, I want to do something on the pollution issue. If it still remains a problem, मेरे जैसे तो हजार हैं यार, एक से एक समझदार आदमी है. Let's pool our resources, start building towards something that solves for pollution. And so what I'm saying is, not only will we have many careers, those careers will be exponentially different from each other. Social media पे कितना लंबा career होता है? 5-10 साल? I don't think last. Yeah. Except Tanmay, I don't know anybody who knows that. कितने साल तुम टिक सकते हो? Because people come and they go, people forget, कोई इतना वो है नहीं. So, yeah, I think there's a pre-money and a post-money man. None of them are happy. Yeah. Have you never met a happy man? I have. My father only was in your happy. childhood. Because your childhood memory. My father was happy in the last. He passed away 3 years ago. I'm sorry about that. But last 10 years, 15 years, while he was in Mumbai with me, he was happy. And any other examples? In your work life, you've probably met somebody who's very happy just being himself. यार मेरा एक दोस्त है, कैली, दिल्ली में ही है, अभी मिलेगा मेरे को. वो हमेशा ही खुश है. उसका क्या प्रॉब्लम है? उसके बहुत प्रॉब्लम है यार. बहुत. According to me, he has lots of problems. वो ठीक नहीं है. तुम साले खुश कैसे है? वो खुश है. वो हमेशा अपबीट रहता है यार. I don't know. That. I have a friend जिसकी लाइफ में ले आ कॉफी. मतलब भाई मैंने ना किसी की लाइफ उजड़ने का सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल रिसेंटली देखा है, तो उसकी लाइफ में देखा है, ठीक है. वन डे ही जस्ट टेल्स मी, आई कांट शेयर द डिटेल्स, कि भाई मेरी लाइफ उजड़ गई है लिटरली. एंड आई एम लाइक, ब्रो फक, डू यू नीड मी? ही इज लाइक, नो, आई वांट टू स्पेंड सम टाइम बाय माय सेल्फ. 1-2 दिन वो अकेले रहता है, अगले दिन आता है, कहता है यार देख ऐसा है लाइफ, तो कुछ ना कुछ करेगी. एंड ही स्टिल स्माइलिंग, लाफिंग, जोकिंग विद मी, प्लेइंग अराउंड. I'm like, इसको फर्क नहीं पड़ता क्या? तेरे पे क्या जादू है यार? तेरा दिमाग ही नहीं फ्लिप होता उस डायरेक्शन में? तेरे को ऐसा नहीं लगता कि फक अब मैं क्या करूंगा? How's that not struck you in this moment? But some people are like that. I've seen some happy guys.
Very, very different. Yeah, but those will be outliers. Society ना is not एक लेबर फोर्स होता है, ठीक है. When you look at आदमी का करियर, उसका प्रोफेशन, उसकी इज्जत, this is one way of looking at it. Right. The other way is you're part of the labor force. You're just another cog in the wheel. ठीक है. School or college, what are they there for? It's not to help you find the best version of you. It is to create More labor force. Yeah. Okay. Agreed. तो आप लेबर क्रिएट हुए हो, लेबर किया है आपने, ठीक है. None of this is geared towards making you find happiness. Nobody cares. They want the world to run, and some people are making the money. I'm reaping the benefits. Okay. I'm not saying मैं उसकी सिस्टम की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट अपने आप को देखो कि आदमी कहता है यार मैं काम कभी एक दिन भी ऑफिस मिस नहीं किया. यू नो, यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ इट, यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ इट, बट यू हैव बीन यूज्ड. You also have to be practical. I feel like as much as hard work is glorified, I genuinely think I enjoy being lazy. Yeah. So work life balance मेरे लिए वो है. It's not that मेरे को एक हफ्ते में कितने घंटे काम कर रहा हूँ, 10 साल में मैं कितना अपने लिए टाइम निकाल रहा हूँ और कितना मैं, वो देखो तुम वर्क लाइफ बैलेंस. चाहे तुम्हें 9 साल करके 1 साल कुछ नहीं कर रहे हो तुम, या तुम 3 years on 1 year off 3 years on, 10 साल में देखो वर्क लाइफ बैलेंस. क्योंकि मैं ये जो अभी जो इकोनॉमी नहीं कर सकता. ये जो है ना कि मैं सिर्फ इतने घंटे काम करूंगा उसके बाद काम नहीं करूंगा, ये बचकानी बनती है. और भाई उसके बाद पता है होता क्या है, अब मैंने आई हैव लिटरली सीन, मैंने 5 दिन काम कर लिया, अब मैं दारू पीऊंगा, अब मेरे को पार्टी करना है. हाँ. अब वो प्रेशर है एंजॉय करने का भी प्रेशर है. मैं क्या करूंगा लाइफ में? वही तो 24 घंटे तुम्हारा एड्रेनलिन अप रहता है. वो आई लिव लाइक दैट फॉर 2 decades ब्रो. राइट. 20 साल में यही था, 20 साल से ज्यादा. You think it aged you faster? Well, you don't look any different. I hope that doesn't get there. No, age. No, I don't think it aged me faster. Did you grow up faster because of that psychologically? No. Till I was doing that, take dopamine, serotonin, ये जो हैं ये बहुत ही एडिक्टिव है. ठीक है. जब आप डोपामिन चेज कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो भी डोपामिन दे रहा है आपको. दारू पी रहे हो दोस्तों के साथ, डोपामिन दे रहा है. पार्टी कर रहे हो, वेकेशन कर रहे हो. जब तुम वेकेशन कर रहे हो ना, तुम कह रहे हो गोवा में यस आई एम हैप्पी, बट तुम थके हो, भैंस सो ही नहीं रहे हो. सो जा भाई, सुबह के 6 बज गए, बीच में बट यू वांट टू बी हैप्पी, यू वांट कि हाँ यस. अगर मैं एक फोटो आया ऐसे, और अगर एक बंदा बीमार बैठा हो कह रहा यार मैं मिस कर गया, मैं दारू पी के उल्टी नहीं किया मैंने तुम्हारी तरह. Do you understand that is what we are chasing? Right. Because that's what we think happiness is. It's not. Every New Year, if you did not puke, were you even in the New Year? Like, did you enter the New Year with us? पिछले साल में ये क्या करा तुमने? Right. So there is a pressure to enjoy life like this. This is very crazy. Enjoyment, joy, and happiness. Yeah. इसमें मेरे को फर्क समझ में आया है. Not because I partied so much, but because my life didn't go the way you thought it might. I was promised it would. Yeah, right. At the point of climax, because I'm assuming there must have been a 3, 4, 5 month. You say that the climax is rock bottom. Actually, I think the climax probably was before or after. Were you? मतलब क्या हो रहा था? Is there a lot of crying involved, therapy involved, or is there something other than that is involved? Lots of other things, man. I'll give you why I'm asking. Things that I can't talk about. Sure. Okay. I get it. I had a friend, bro. उसकी लाइफ का क्लाइमैक्स ही वॉज एन आर्मी मैन बाहर, और उसका सीन क्या था भाई, वो ना PTSD हो गया उसको. अच्छा. आती. एंड ही वॉज अ फुल, मतलब ये अफगानिस्तान में IED स्पेशलिस्ट, उसका काम था बॉम्ब्स डेटोनेट करना और बॉम्ब्स को वो फ्यूज करना अगर फटने वाले हैं. एंड सो बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक्स योर मैन विल डाई, एंड बिकॉज ऑफ योर सर्विस टू योर कंट्री देयर मैन विल डाई. ही इज डीलिंग विद डेथ एट स्केल एवरी डे. कम्स बैक, मेरे को मेरी यूनिवर्सिटी मिला, और उसका इतना बुरा हाल था दैट बमों ने ना उसका दिमाग में TMI या तो ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी या कुछ कर दिया था, वो पढ़ भी नहीं पाता ढंग से. एंड ही इज कम्पीटिंग एट वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज विद द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टूडेंट्स. सो ही टोल्ड मी, कहता मेरे को 4 बार पढ़ना पड़ता है जो तेरे को एक बार में समझ आता है, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड वन डे वी गॉट टॉकिंग, ही टोल्ड मी माई लाइफ वॉज सो बैड आफ्टर द मिलिट्री, आई जस्ट वॉन्टेड टू डाई. मैं हाईवे पे दारू पी के जोर से बाइक चलाता था कि मेरे को कुछ हो जाए, समथिंग शुड हैपन टू मी सो आई फील दैट जो मैं फील कर रहा हूं वो ना फील करना पड़े. एंड ही सेड देन आई स्टार्टेड फाइटिंग एज इन मार्शल आर्ट्स. ही स्टार्ट डूइंग जिजित्सु एंड ऑल दीज थिंग्स. और कहता है उस चीज ने ना मेरी उस सारी एनर्जी को चैनल किया दैट रेस्क्यूड मी फ्रॉम द प्लेस आई वाज इन, एंड आई रिहैबिलिटेटेड माई सेल्फ. एंड सो
it's not just that you go talk to somebody as a therapy session. There's a bunch of ways that guys go through to have that transition. Some of these people, bro, watching right now are on this side of that transition. उनको बस किसी को ने बोला नहीं है कि जा. How should someone approach that if they are finding कि वो war time active हैं, सारा time adrenaline चल रहा है? यार मेरे ख्याल से ना अवेयरनेस ही नहीं है. सबसे पहले ना मुझे लगता है कि हम सिर्फ कंडीशनड हो जाते हैं. एंड जहाँ पैदा होते हैं, आई एम अ मेल, आई एम अ हिंदू, आई एम अ इंजीनियर, ये हमारे डेफिनेशंस हैं. Sure. ओनली जब ये डेफिनेशंस तुमसे हट जाती है ना, तब तुम सोचते हो कि अब मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, हु एम आई. सो आई थिंक इफ एवरीबडी took that identity and thought about it a little bit, it'll help them. For me, it was love that rescued me. It was a reason to live. I used to spend a lot of time thinking about how I would prefer to die. And you had a detailed list? I didn't try, but I thought and evaluated every possibility. गाड़ी के नीचे आके मरूं, दर्द होगा. शेर खा जाए, डर लगता है. आग, मेरे को आग लगी हुई है. ओ भाई साहब, वो दर्द मैं नहीं सह पाऊंगा. डूब जाऊं, मुझे पानी से डर लगता है. नहीं, मैं डूब नहीं सकता. बिल्डिंग से कूदूं, नहीं, मेरी जान निकल जाएगी नीचे देख के, मैं कूद नहीं पाऊंगा. जहर खा लूं, जहर खा के उल्टियां होती रहेंगी भैंस की आँख. मैं नहीं. और बच गया तो जहर खा के और सरदर्दी. हाँ. फिर मैंने कहा पंखे से लटकता हूँ. पंखे से लटक के हो सकता है. अगर मेरे को करना पड़ गया तो ये चोजन मेरा मेथड होगा कि मैं पंखे से लटकूंगा. फिर उस दिन रात को मुझे याद है, सर मैं नहीं लटक पाऊंगा, दर्द होगा मेरे को. एंड आई रिमेंबर ऑलमोस्ट सॉबिंग कि यार आई कांट इवन गेट आउट. इफ आई हैड टू, आई एम नॉट नाउ. आई वाज थिंकिंग इफ आई हैव टू, बट इफ आई एम थिंकिंग लाइक दैट, Where am I? Yeah. मैं अजीब सा हो गया था. So that was a time when it was very dark for me. Yeah. Then I met Natalie. Of course, my ex-wife supported me a lot. उसको मैं बता था. Was the only person I could talk to at that time was her. And she supported me. She understood what I was going through and supported me. Then I met Natalie, and really my life changed. Yeah. So for me it was that. I don't think it needs to be love for anybody. Sure. बट हम आदमियों को, क्योंकि हम सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं, रीज़न भी अक्सर बाहर से ही आता है. हम अपने लिए कुछ नहीं करते. यू नो, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी. आई डिडंट वॉन्ट टू बी हैप्पी बिकॉज आई फेल्ट आई हैड फेल्ड. यू नो, आई हैड फेल्ड एज अ मैन. सो आई रियली आई डिडंट थिंक आई डिजर्व्ड हैप्पीनेस. आई वांटेड टू पनिश माई सेल्फ. आई रियली वांटेड टू पनिश माई सेल्फ. So that's when you say I went through a lot, man. How was your brother in these circumstances? Fully supportive. But was he feeling, क्या मतलब? वो मेरे को हर जगह से बचा. If I wanted to spiral down, वो आके मेरे पास बैठता था. He would just be with me so that I'm not alone. अगर मम्मी पापा चिंता कर रहे तो वो उनको साइड रखता था. नहीं, ठीक है, all that. You know, he would always, if I don't know how people do it with our twins, but Rajiv of course really helped. My ex-wife really helped. मेरा सपोर्ट सिस्टम है. आई एम नॉट अ विक्टिम हियर. Yeah, right. That's not what we're talking My about. My parents were there, my sister, my brother, my ex-wife, my friends. चाहिए तो है, बट बिकॉज तुम खुद को एक तरीके से देखते हो. If you will see yourself as a failure, as less of a man. That's here, bro. Yeah, but that's what I had to overcome. मतलब वो फैमिली नहीं सॉल्व कर सकती, वो दिमाग में है. That's a fight between you and you. Yeah, right. Like it's a very personal fight you're fighting. Yeah. So slowly I did that after I met Natalie. I am completely different than I was. I don't recognize that guy. What happens when you watch something? I don't know. If I you don't watch myself. You don't. Do you think about it? Like, I'm going to put something on a humorous level pe. Bro, I will never in my life get over Devarshi as a contestant. मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को वो याद है. That interview is in my soul. And I'm not saying it is in my soul today, it is in my soul since then. The minute I saw it, it was the best use of words in that circumstance. इसके लिए ये disco light है. I'm like, इसके दिमाग में ये कैसे आया? Like, how is this happening? So what do you think when you think of that? I don't know, man. कई बार ना मुझे बिलीव नहीं होता है. मैं बिलीव नहीं करता हूँ that was me. मेरे को ना जब when I was going through
माई ट्रांजिशन या रॉक बॉटम टाइप ना, उस टाइम मैंने कोशिश की देखने की. मैंने कहा कि ये मैं हूं क्या मैं ऐसा था? कैन आई बी सो वाइटल, जो मुझे ऐसा लग रहा था, कि मैं वापस उसमें ट्यून इन कर लूं. हाँ, मैं आई वॉन्टेड टू बिलीव इन माई सेल्फ. राइट. सो आई ट्राइड वॉचिंग. आई कुड नॉट एसोसिएट माई सेल्फ विद इट एट ऑल. मेरे को मेमोरी नहीं है कई चीज़ों की. वाओ. आई हैव रिटन अ बुक, द बुक इज माई हाउस, आई कांट रीड इट. मुझे मेमोरी नहीं है कई चीज़ों की. सो व्हेन आई थिंक ऑफ इट, माई वाइफ टेल्स मी, नैटली कीप सेइंग कि यार तू बातें करता था, लोग सुनना चाहते हैं. तो मैं बोलता हूँ नहीं यार, नहीं करना मुझे, नहीं करना. आई रियली कांट सी माई सेल्फ लाइक दैट नाउ. I think I'm wiser now. I really think so. Experience, जैसे मैंने कहा, I've learned lessons. चाहे कितना भी, however it is looked down upon, learning a lesson or being taught a lesson, I am proud, I'm happy, I'm grateful that I've learned some lessons. And I've grown in a manner which is, I'm happy now. So, I don't know. It's like, हम देखिए, हम Which movie is that? अमिताभ बच्चन. क्या अच्छा. बात कर रहे हो तुम? कौन से जनरेशन? मैं 96 में पैदा हुआ भाई, तब आप कॉलेज में थे. हाँ. सो उसमें अमिताभ बच्चन होता है टाइगर, उसका नाम टाइगर होता है. देन ही बिकम्स दिस फैमिली मैन कॉल्ड शेखर. बट ऑफ कोर्स उसके लोग हंसी उड़ाते उस पर कि तू कितना यू आर सच अ मीक पर्सन. वैसे आई फील लाइक दैट. आई फील लाइक शेखर राइट नाउ. I see what you mean. You know what? Who am I? But what I will take away from this conversation. Damn. What I will take away from this conversation, and we don't have to agree on this. My feeling is there is a very real reason why people resonated with Rodi's Raghu, and that is because Freud spoke about how being in society is a contract. एक इंडिविजुअल सोसाइटी में घुसता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं अपनी सारी जो मेरी बेस डिजायर्स और इंस्टिंक्ट्स है ना, उनको साइड कर दूंगा और मेरे को कंपनी मिलेगी, मेरे को एक कलेक्टिव सेट मिलेगा जिसका मैं पार्ट होता हूँ. सोसाइटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट एन इंडिविजुअल एंटर्स इनटू एंड देयरफॉर ट्रिम्स सम ऑफ हिज ओन पर्सनल डिमांड्स एंड सच, राइट? In a very controlled setting, you were able to display some of those trimmed parts to people. Wow. And therefore, it inspired them in a way they could not articulate. Your fame was very different from a film star fame. Yeah. I'm sure कि शायद उस टाइम पे एक फिल्म स्टार के लिए कपड़े नहीं फट रहे होंगे, बट रघु अगर चंडीगढ़ में कॉलेज जा रहा है ना, तो लड़के अपने कपड़े उतार के नाचने को रेडी है, कुछ भी करने को सोच रहे हैं एक महीने से कि मैं रघु से क्या बोलूंगा. या मतलब एक आदमी अगर घर बैठ के, कभी भी मैं नहीं सोचूंगा कि मैं अमिताभ सर से मिलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा. मैं उस टाइम में चंडीगढ़ में बच्चा कह रहा है भाई रघु से मिलेंगे, ये प्लान खेलेंगे हम लोग, ये सेटअप बनाएंगे, राइट? एंड सो यू आर्टिकुलेटेड और यू एक्सप्रेस सम ऑफ दोज पार्ट्स. इफ यू टेक दोज टू द एक्सट्रीम विच शो बिजनेस विल वांट यू टू, एंड यू नो अगर आपके लिए चल रहा है ना भाई, आप क्यों रोकोगे? लाइफ विल ऑलवेज टेंड टुवर्ड्स द मोर एक्सट्रीम. यू केम एट अ क्लाइमैक्स दैट वाज वेरी पेनफुल एंड यू डिसाइडेड टू change and you I walked away completely. You walked away, which I don't think anybody can imagine that you can do, which I did. And I'm sure people in the comments will still be like, अरे what is this guy? Like मैं समझ सकता हूँ कि लोगों का perception कितना shock हो सकता है इस चीज से. But that point happens and now you became a different guy, which is wiser. You're right. You know, you are able to receive. When you say I'm able to take a lesson from life, it is against your pride, but it's a receptive thing, you know. The first part is invasive. रघु कहता है मैं dominate करूंगा. अब रघु कहता है मैं receive भी करने को ready हूँ. I think you will never be able to live a life. This is my guess. Please don't take it. But I don't think you'll be able to. Sirf this person cannot live on. I think this person has to be integrated into this person. Maybe in charge नया रघु है. But I think पुराने रघु को अंदर. मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है पुराने रघु से. मैं मान सकता हूँ. I can believe. मैं नैटली को हर बार बोलता हूँ अपनी वाइफ को, मुझे डर है कि मैं वहाँ जाऊँगा फिर करूँगा. I am not saying he's a bad guy. He is actually, he protects me. Yeah. But फिर तहस नहस ना हो जाए. मेरे को the point where I was, मैं पंखे देख रहा हूँ कि भैंस क्या स्टर्डी है. You understand? I know, I get it. Just that concept scares me now. Yeah. अभी तुम बोल रहे हो ना रघु के बारे में ऐसा सोचते हो, ये फेम है. मेरे को ना सुन के भी बड़ा अजीब सा फ्रॉड टाइप फील हो रहा है. Imposter syndrome की पता नहीं किसकी बात कर रहा है. That's not me. That's not me. मैं हूँ ही नहीं. But this visceral reaction कि नहीं मैं ये नहीं हूँ, over a period of time, whether you like it or not, वो कम होना पड़ेगा so that this person, क्योंकि अभी ना आप कह रहे हो it protected me. Bro, that guy has to protect your son also one day. Yeah. It has to. अगर करना पड़ेगा ना मेरे को, नहीं. like you know. Of course. So I think in me, मेरा personal realization ये है, wartime Prakhar must go to sleep right now, but he should remain alert.
क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना तो निकलना पड़ेगा भाई. हाँ नहीं वो you're right. हाँ. You're right. You can't be all water all the time. You Yeah. have to be fire also at Right. sometimes. Yeah, I really think. See, in my life I will be when जब मेरे को जद्दोजहद करनी होगी ना, जैसे मेरे डैड ने की, 2 नौकरियां करनी पड़ी, किया. ठीक है. उसके बाद जब सबने कि जो मेरे को करना है वो मैं बाद में करूंगा, 10 साल बाद करूंगा, 20 साल बाद करूंगा, बट मैं करूंगा. वो जद्दोजहद मेरे को करना पड़ेगा, मैं करूंगा. वो वाला पैशन मेरे को तुम्हें दिखेगा उसमें, बट वो दुनिया को नहीं दिखेगा, बिकॉज ये एक बहुत ही प्राइवेट बैटल है जो हर आदमी लड़ता है. Agreed. ये एक वर्ल्ड स्टेज पे नहीं है, टीवी पे नहीं आता हर सैटरडे 7 PM. Agreed. यू नो. हाँ. सो वो है, आई हैव इट, बट दैट्स नॉट हाउ. जब तुम मेरे उस लाइफ की बात करते हो ना, तो तुम मेरी इस स्ट्रगल की बात नहीं कर रहे हो. तुम एक चीज की बात करो जो तुमने देखा है. Sure. एंड दैट इज समथिंग आई हैव पुट इन माई पास्ट कि आई डोंट वांट टू डिफाइन माई सेल्फ बेसिस व्हाट पीपल सी मी एज एनीमोर. You know, Sure. It's very taxing also. it is. It's so taxing, bro. So bad. आप मतलब पता है, it is very hard to build a connection with anybody who knows you in any way. मतलब अगर कोई आके मेरे को बोलता है ना, भाई मैं आपका बहुत सारा पॉडकास्ट देखता हूँ, अब मेरे को पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता है यार. मतलब Everybody has a different version of you in their mind. या और अब मतलब अगर मैं वहां खड़ा हूँ और मेरे हाथ में कॉकटेल है तो ये सोचेगा अबे ये तो शराब पीता है पॉडकास्ट पे. तो मैं तो नहीं बोल रहा भाई, तुम कुछ भी अल्कोहल से अब वो एक रिलेटेड. लड़का तेरे को सुंदर समझता है, अब तू हमेशा उसके सामने जब भी आएगा, आज मैं सुंदर नहीं लग रहा, हरामजादे. मेरी गर्लफ्रेंड को You are seeing someone else. मेरी गर्लफ्रेंड को ना सुंदर वर्ड समझ आता है, तो उसने बोला उसके सामने, कहती है आई एक्सपेक्ट पीपल टू कॉल मी सुंदर, नाउ दे आर कॉलिंग यू सुंदर, व्हाट्स रॉन्ग. और वो बहुत टाइम बाद इंडिया आई है, सिंस लाइक अ ईयर हो गया. तो अब वो देख रही है कि आप कहीं भी जाओ प्रखर के साथ यार लोग हेलो सर कर रहे हैं. तो फॉर हर इट वाज पार्ट ऑफ दैट पैकेज. बट I understand, like I mean I get कि आप you never want to be that person all the time anyway. But do you see that as a defeat of me? No bro, I mean you are, I'm assuming late 40s. Yeah, I'll be 50 in 2 months. Yeah, bro, whether it is in the public stage or not, I think there is so much more beautiful work to come out of you that your story is not at a full stop at all, not even at a comma. I think this transition, I would be in an alternate universe if I was sitting across that Raghu. I'd be like कभी तो ये खत्म होगा भाई. मतलब ये आग जल रही है. मैं भी ये सोच रहा था कि यार हर साल मुझे फिर करना है. यू नो, देयर समथिंग कॉल्ड बेस लाइन नॉर्मल. हाँ. अब ये लड़ाइयाँ हो गई हैं यहाँ पर, उस पिच पे आर्ग्यूमेंट्स हो गए और इंटेंसिटी पे इंटरेक्शंस हो गई हैं. दैट्स योर बेस लाइन नॉर्मल. अब इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या. Why should I keep doing it for you? Right. It's harming my mental peace. And it's clownery ना. You're being a clown on हाँ, camera. मैं नाच रहा हूँ तुम्हारे लिए. Right. You know, मेरे को एक सुपरस्टार का अवार्ड दे दिया, नाम भी नहीं है मेरा, पता नहीं 10 रुपए का लेके आए हो आप. You know. Any guy or girl motivated by passion. Yeah. मेरा एक इंटरेस्टिंग एंगल हमेशा कहते रहता है, जब ये खत्म होगा तो क्या बचेगा. हाँ. क्योंकि खत्म होगा भाई, आग जल रही है, कब तक जलेगी यार. 50 60 70 80 साल आग, जो फाइनल आग बुझेगी वो तो बुझेगी तब ना. तो मेरे को नहीं लगता, आई डोंट थिंक दैट इज योर डिफीट. आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू हैव टू डील विद दिस क्वेश्चन इन योर हेड, बिकॉज आई एम श्योर यू हैव टू, राइट. बट इफ यू टेकिंग द वाटर वे, टेक द वाटर वे. Except everything. Yeah, I don't see it as my defeat at all. I wanted to know if it looks like for people that it is, because I am now happy. That's what I'm saying. Yeah. I'm happy. How can that be a defeat? Right. Once I switch off social I media. may not have the things that you think people should have. Right. For status or happiness. Status भी क्या है? Happiness केवल यही चाहिए ना तुम्हें status. You don't want status का क्या? अचार डाल के खाएगा क्या? सही. You think वो status मिलने के बाद तो खुश होगा. You'll be happy. So I'm happy, man. So मिल गया ना shortcut. Right. And अब यहाँ से शुरुआत जो होगी ना, whatever artistic endeavor that begins here will be much more interesting than the artistic endeavor you did for the people. Yeah. ठीक है, एक people, one for the kitchen, one for the soul वाली बात है. I think the soul part will arrive. So I don't think that question never even appeared to me. But how long have you been at it? 140. Is there a question you have for me? I have lots of questions, man. Please. I have lots of questions. Primarily about relationships. Yeah. And we are talking about men. So in your generation, Abhi, what is chivalry? Is there a place for chivalry? I think it's a completely unoccupied advantage that men should occupy. Because if there is no place, if you're chivalrous, you just do so much better in society. मतलब मैं इसको as a moral compulsion नहीं देख रहा, मैं strategic advantage की बात कर रहा हूँ. I think baseline shift हुआ है. ठीक है, I heard you on Untriggered also. Sex has become much more transactional to the point it has become tokenized. In an ideal world, we don't even have to have sex. You can use your sex toy, I can use my sex toy. We can just enjoy each other's company while doing that, right? Like it has gone to that place. Yeah. I definitely think
dating apps have really muddled. यार मैं घर बैठे बैठे रिजेक्ट हो रहा हूँ. मैं 6.5 फुट का आदमी, मैं घर बैठे बैठे रिजेक्ट क्यों हो रहा हूँ, राइट? वो कहता है ना, दिस गाय वुडी एलन सेड, आई एम सो हैप्पी. लोग बोलते हैं ना कि इट्स बेटर टू बी बाइसेक्सुअल, योर चांसेस ऑफ डेट्स ऑन सैटरडे डबल. तो वुडी एलन यूज्ड टू से दैट, said that I'm so glad I'm not bisexual. I don't think I could take rejection from men and women at the same time. Rejection is also such a uniquely, मतलब हमें पता है भाई It's a क्या होता है. masculine भाई इतना दिक्कत होती है to get over the fact कि उसने मेरे को देख, मेरा मुंह तो खुलने देती है, पहले ही मना कर दिया, right? But I think chivalry, यार पता है मेरे को लगता है लार्जली 2 टाइप के लोग हैं. एक अनहिंज्ड है जो रिएक्शनरी है, और एक सुपर ट्रेडिशनल है जिसको लगता है कि मैं अगर लड़की को धीमे धीमे गिफ्ट दूंगा और उससे फ्रेंडशिप की एक्टिंग करूंगा, हाँ सिंपिंग, राइट, फ्रेंडशिप की एक्टिंग करूंगा, एक दिन वो पलट जाएगी. कि मैं उसको 4 महीने टेक्स्ट करूं तो वो मेरे को चांस देगी. एंड आई थिंक बोथ ऑफ दोस पीपल आर वेरी रॉन्ग. आई थिंक पीपल डोंट अप्रोच सेक्स हेड ऑन एट ऑल, और रिलेशनशिप्स फॉर दैट मैटर. मुझे लगता है कि व्हाट मेक्स शिवलरी राइट और रॉन्ग इज द गर्ल. इफ शी अप्रिशिएट्स इट, इट्स राइट. इफ शी टेक्स इट फॉर ग्रांटेड, इट्स रॉन्ग. यू कैनॉट, तुम्हारे को एक प्रिविलेज दिया है औरतों को. Sure. हम आपको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, आपको दरवाजे तक खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं कर रहा हूँ आपके लिए. आप ना ये एक्सपेक्ट मत करो मेरे से, एंड प्लीज़ अप्रिशिएट. एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अभी वैलेंटाइंस डे आने वाला है, ठीक है? मुझे पता है काफ़ी लड़के टेंस होंगे इस वक्त, उनकी जो बॉयफ्रेंड्स हैं और जो हस्बैंड्स हैं, कि उनकी वाइफ की ना एक्सपेक्टेशन आ चुकी है कि बंदा कुछ करेगा, है ना? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की क्यों उसका काम है यार वो, क्यों एक आदमी की जिम्मेदारी है वो. इट्स अ कपल थिंग, राइट? तो ये थोड़ा ना कि आदमी सर्विस पे लगा रहेगा. और अप्रिशिएट करो. मैं ये नहीं कह रहा आदमी को नहीं करना, करो, बट अब अगर औरत एक एक्सपेक्टेशन, नहीं मेरे को तो सोचा था कि वेकेशन पे लेके जाए, वो मेरे को लगा एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा, नहीं दिया, तो ठीक है यार, जो कुछ किया ना उसको अप्रिशिएट करो. गिफ्ट की आत्मा मर गई. आत्मा मर गई, क्योंकि अब तो तुमने एक्सपेक्ट कर लिया कि ये 75,000 से ऊपर की चीज देगा तो गिफ्ट है, उससे नीचे तो डिसअपॉइंटमेंट है. अब सिर्फ फूल दे दिए तो यार अप्रिशिएट करो. मैं वही कह रहा हूँ कि शिवलरी हो या कुछ भी हो, आप कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, it is the girls, some girls deserve it, some girls don't. I'm sorry, but that's the way it is. For you to deserve it, you have to appreciate it. It has to be worth something to you for you to deserve it. If it's not worth, if it's transactional, then you don't deserve it. I'm sorry. Power works best when it is played in a ping pong fashion. Ki I give it to you, you give it to me. And if we circulate power this way, then grace and beauty happens. Varna wo pathological और self eating बन जाता है. मतलब you can tell किसकी नहीं बन रही because expectations ऐसी आ गई. तुमने तो कहा था ये चीज़ है कि लड़कियों को ना अब बैठे बैठे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना. एक इंस्टाग्राम में एक फोटो भी डाल दिया ना उन्होंने, उनको वैलिडेशन का ओवरडोज है ये. अब मैं ना एक, इफ आई टॉक इन योर जनरेशंस लैंग्वेज, every 4th thing she is an 8 at least. Hasn't that always been the case? Okay, but I don't. I don't subscribe to that. I don't rate people on looks. Having said that, he says that he's laughing. Listen. Yeah, sorry, bro. Sorry. You're too fucking twos to have a laugh like that. Okay, हंसना मत. Total हम लोग 8 हुए. Total भी 8. ठीक है, तो अभी क्या है कि उनको अब आदमियों से वो चाहिए कि मैं ट्रीट मी लाइक दैट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. और आदमियों को कहीं वैलिडेशन मिल नहीं रही, सिर्फ रिजेक्शन मिल रहा है, तो वो दे भी रहे हैं. तो ये जो पावर डिफरेंशियल था ना, वो इंटरनेट और डेटिंग एप्स आने के बाद और बढ़ गया अजीब सा. आई थिंक बोथ मेन एंड वुमेन वुड बेनिफिट अगर एक दिन ना एक लड़के का फोन एक लड़की लेके एक अपलोड करे उस लड़के का, और वो देखे कि क्या रेडियो साइलेंस है उस अपलोड पे, और एक लड़का एक लड़की के डीएम में जाके देखे कि कितने अन्य फन्ने खा बैठे हुए हैं वहां पे, अनशंट कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, रात को बोर हुए तो डीएम कर दिया लड़की को कुछ भी. And that will change your perspective on how women are treated in society, because it's a constant thing. Bro, I was talking to a friend, school friend, recently, and he used to date the most beautiful girl in our school back in the day. Okay? And she was very distinctly beautiful because uske physical features were a standard deviation different from the rest of us. अच्छा. कि वो हमारे जैसी भी नहीं दिखती थी. She looked very different. I don't want to describe any further. And we were talking about it, the history, this, that. ऐसी बहुत टाइम बाद मिले थे, 10-15 साल बाद.
मैंने बोला यार पता है मेरे को हमेशा लगता था इस लड़की की क्या प्रॉब्लम होगी, शी कॉन्स्टेंटली इज द सेंटर ऑफ अटेंशन इवन व्हेन शी डजंट हैव टू बी. उसका मन भी नहीं है, वो ड्रेस डाउन करके आई है बट सब लोग उसको देख रहे हैं और वो 12 साल की उम्र से देख रहे हैं. उसका दिमाग कितना मेसअप हो चुका होगा इस चीज से, नॉट फ्रॉम द वैलिडेशन, फ्रॉम द फियर ऑफ इट ब्रो, फ्रॉम द फियर ऑफ द फैक्ट कि मेरा बस वाला ड्राइवर मेरे को देख रहा है स्कूल ले जाते हुए. That's some messed up shit. By the way, my wife has that anxiety and your wife is going to have that too. If you look different, यहाँ बहुत घूरते हैं. I'm a twin, so I told you, I understand completely that it does mess with you. It does mess with you. Yeah, right. And for guys, it is such an underappreciated landscape unless you're exceptional, phenomenal, something of that nature. Unless you're funny sometimes. Guys become funny. Become funny for that. So that a compliment can be given your way. People are responding to At least you can pretend to be unfazed by criticism. अबे तू तो मोटा है, तू भद्दा है. मैं, you know, there's so much of me. You're too full of yourself. Yeah, you'd be full of me too. Right. So those kind of things, it's a defense mechanism a lot of times. I've had guys who want to control the playlist of the music that is being played in the room or the car because it feels कि कुछ मैं कर रहा हूँ and like people appreciate it. And that's very, very sad. So I really want, you know, your female audience to know this कि women, we know कि life is tough for you. All right? And probably even tougher. Yeah. I'm okay with that. Yes. And we are there to support you and to help you deal with life. Okay? That's what we do as men. What you need to do as women is understand that when it comes to social interactions, especially at a younger age, you're privileged. Men are, तुम्हें जितनी validation मिलती है उससे ज़्यादा rejection आदमियों को मिलती है. Understand them, appreciate them. प्लीज़ डू दैट, बिकॉज वरना ये एंड्रू टेट टाइप की जो टॉक्सिक मैस्कुलिन फिलोसफी ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और फिर तुम बोलोगे कि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आ रही है. यू कैन इन्फ्लुएंस इट बाय जस्ट गिविंग मेन लव. The only proper antidote to a toxic masculine or feminine approach in life is a happy couple. क्योंकि वो अगर खुश है ना तो वो टेट की बात सुनेगा, बोलेगा इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है भाई, खुश रहना इतना मुश्किल नहीं है अपनी वाइफ के साथ. वो बोलता है कि अगर तुम इतने फिगर में नहीं कमा रहे हो, इतनी तुम्हारी सीसी की गाड़ी नहीं है तो तुम कोई आदमी हो ही नहीं. चल भाई. हाँ भाई वो कह रही है मैं हूँ, ये देख है बगल में भाई, इतना कोई लोड नहीं है. सो यू आर वेरी राइट एक्चुअली. दिस इंटरेक्शन आई थिंक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन और ये इतनी बात होती नहीं. मैं आपके व्यूअर्स को बहुत डिसअपॉइंट कर चुका हूँ. नहीं, I don't think so. And I'm okay with it. Yeah. I'm okay with it. Hey man, I don't know why you say that. I know, I think this has been very, very fun. I don't know. Thank you. I think this is something super interesting. I didn't think हम लोग ये सब बातें करेंगे in this way. And frankly, you are not very different from who you were. I mean, you can take out that performative aggression, your tone, the way you talk, the way you have humor. It's all still very much there. And I'm hopeful we can do this again sometime. Yeah, sure. Really, this has been amazing. Is there anything else you have to say to me at all? No, yeah, just this. I really think that I love the fact that there are podcasts like this which are 2 hours long and that people are watching it. This is of course entertainment है, but interesting होना चाहिए. I mean, interesting. Sure. You know, and that gives you a lot of power. And I want you to be careful with it because your best case scenario is that you will reach a place जहाँ तुम्हें अब नाचना पड़ेगा. My best case scenario is I stay under the radar and make enough money. वो नहीं होता. तो with that kind of money you'll have to dance to the tunes. हाँ? तुम्हें नहीं उस जगह पर आना पड़ेगा. अब या तो नाचो या टूटो. I walked away. I hope I can walk away. Yeah. Right. That's probably what we hope for. But thank you so much, brother. Cheers. Thank you so much. I'm so glad.